कि either of it needs to work properly so that you are at your optimum health. तो अब सवाल आता है ऑप्टिमम हेल्थ के लिए हमें करना क्या है. किसी को नर्वस डीजेनरेशन है, किसी को मस्कुलोस्केलेटल डीजेनरेशन है. न्यूरो डीजेनरेशन मतलब ड्रॉप फुट इज वन एग्जांपल. मस्कुलोस्केलेटल मतलब आर्थराइटिस इज वन ऑफ देम. नर्वस सिस्टम का माइस्थीनिया ग्रेविस. तो ऐसे कई एग्जाम्पल है नर्वस सिस्टम डीजेनरेशन के एज वेल एज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डीजेनरेशन. तो डीजेनरेशन इज अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग इन अ एजिंग प्रोसेस. डू यू अग्री विथ मी? यस और नो? Sudeep sir, Sushil sir, I have increased my volume to the maximum. I think you need to log off and log in again. So किसी किसी को नर्वस सिस्टम डीजेनरेशन है, किसी किसी को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डीजेनरेशन है. तो क्या कारण है इसके लिए? एजिंग प्रोसेस में दिस इज वेरी कॉमन, स्पेशली फॉर women post menopause, that is after 50. We'll see a lot of people with these knee issues. Knee pain काफी common होता जा रहा है. Of course, before menopause also people do come across all these kind of problems. So that is related to our lifestyle, our fooding habits. That is what is contributing to the health problems which is happening much younger than it should happen. Okay, so now we have come to the conclusion कि अब degeneration तो होगा. अब हम करें क्या कि ये degeneration को हम लोग थोड़ा speed घटा सकें, यानी कि regeneration बढ़ा सकें. तो अब सवाल उठता है, regeneration possible है क्या? Do you think regeneration is possible? Let's make it a little more interactive. I can see a lot of black board around, so can I have the faces so that थोड़ा मजा आए बात करने में. आदित्य सर, माथुर सर, can we have the cameras on please? So can we regenerate? कोई चीज को हम लोग regenerate कर सकते हैं? आपने कभी सुना है ऐसा? Yes or no? Please write in the chat box. Is regeneration possible? Do you think so? Okay, Sudeep sir says regeneration is possible. Okay, so most of us are saying no. तो अभी हम आपको बताते हैं regeneration कैसे possible. According to medical science, probably regeneration is not possible. और कुंभक साइंस में regeneration possible है. तो क्या आप सब लोग को जानना है regeneration कैसे होगा? Yes or no? Type in the chat box so that I open up the Kumbhak therapy for you. Okay, thank you so much. Just give me 2 minutes. I will share my screen. Is my screen visible? Yes. So Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal issues. So namaste, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing your neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be facing, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. So हमने जैसा बताया था आपको, ये इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बहुत ताकतवर होनी चाहिए ताकि आपका ह्यूमन सिस्टम works at its optimum level and you are in the best of your health. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi.
Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. So he has taken people out of chronic diseases like thyroid, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human body. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. A profound way of addressing the aspects of the human system. Now let's come to the fact, who is this webinar for? Surprising question, right? ये कैसा क्वेश्चन है? Who is this webinar for? ये क्या सबके लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं है. क्यों? क्योंकि we are looking at people who are tired of temporary treatment, who are not looking to just pop a pill and carry on with life, but are looking for some natural and permanent solution that lies within you. You don't need any external intervention for that. So people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. So reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the Ashta Sharir or the 8 Sharir or the softwares. Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti Sharir and the Vikriti Sharir. तो हम लोग जब न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो obviously all the 8 Sharira is equally important in its own way, but the Prakriti and the Vikriti Sharir holds a lot of importance. तो जैसे कि हम रीजेनरेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो जब प्रकृति शरीर, प्रकृति यानी कि नेचुरली आप अपने शरीर में रीजेनरेशन पावर कैसे बढ़ाते हैं. विकृति यानी कि डीजेनरेशन, जो नेचुरल प्रोसेस है ऑफ अ ह्यूमन सिस्टम. So what all Ashtang Chikitsa can heal? Of course, the list goes on and on, considering there are a lot many problems than the ones that are listed here, but these are the common ones seen among participants. So what are those? Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issue, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, dropping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy or the nerve issues. I'm sure आप mostly सभी लोगों ने ये सब नाम तो सुने होंगे. इतना common हो गया even among youngsters. Thanks to technology, thanks to the environment, and the list goes on and on. So let's hear from Swami Raj Vibhuji. उनको हमें क्या बताना है कि कैसे हम अपना रीजेनरेशन फैक्टर बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Listening to me patiently. Abhi, I will just give you a brief on how we proceed. Firstly, we will play the recorded video of Swamiji where you will get a little insight on how you come out of your current problem. Then, of course, we share the program details. Uske baad, we will be inviting somebody live to share their journey of Ashtang Chikitsa. And lastly, we will be taking up the questions. So please write in the chat box all your questions, jo bhi aapko problems hai, along with your name and number so that we can get back to you. Thank you so much. Namaste. Over to Anilji to share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है,
they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक knee injury किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और a sports person who has somehow damaged one knee. एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. पीपल आर स्टिल गेटिंग इनटू प्रॉब्लम. देन व्हेन यू गो टू द डॉक्टर विथ योर नी प्रॉब्लम, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हियर इज डीजेनरेशन इन द जॉइंट. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है. वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था. रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो a part of this human system, but regeneration is not happening properly. Degeneration is happening. दूसरा कारण होगा, now some person goes to a doctor with a swollen knee, inflammation in the knee. लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. इफ योर लिवर गेट्स इंपैक्टेड, देयर विल बी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. सो योर प्रॉब्लम विल रिमेन अनडायग्नोस्ड. यूजुअली दीज डायग्नोसिस आर नॉट डन. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज एन इश्यू विथ डाइजेशन. नाउ रचना जी सेड आफ्टर मेनोपॉज osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा. Lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. इफ दे हैव बिकम ब्रिटल बाय कैल्शियम, हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बाय टेकिंग कैल्शियम? नॉट इवन अ सिंगल एग्जांपल. एक भी एग्जांपल नहीं है. रादर, डू यू नो इफ यू टेक लॉन्ग टर्म कैल्शियम, द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल इंक्रीज बाय 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or
some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurveda kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं. आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more.
इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट डू यू डू? यू डू लॉन्ग एक्सहेलेशन. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही situation मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू, अ बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति, अ बैलेंस ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन, एंड देयर इज अ मेथड टू डू इट. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, व्हाट डू यू डू? समबडी इज हिटिंग यू, कोई आपको मार रहा है, यू फील डैमेज ना, यू थिंक देयर विल बी अ डैमेज. व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, इजंट इट? यस और नो? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. व्हाट एवर आई एम सेइंग, यू नो इट ऑलरेडी. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, देयर आर सर्टेन सीन्स दैट यू डोंट वांट टू वॉच. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, सी अ किड, द किड विल क्लोज द आईज. सो यू होल्ड योर सेंसेस ऑल्सो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. यू होल्ड योर ब्रेथ. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya.
The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना? वहां पे so disalignment. If you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a backrest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें. Just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. When you pull, what do you do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath. Yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath.
अगर आपको तरीका पता है ना, हाउ टू अलाइन, हाउ यू वांट टू अलाइन योर नेवल, हाउ यू वांट टू अलाइन, हाउ यू कैन अलाइन योर चेस्ट, अगर ये तरीका पता है ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू अलाइन. सो इट नीड्स अ लिटिल कमिटमेंट, एक थोड़ा कमिटेड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है उसके लिए. दैट इज व्हाई वी टीच इट इन द क्लास, हम क्लास में सिखाते हैं. द फोर्थ एस्पेक्ट, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण मीन्स डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं, वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस, हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में, एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाईं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? Here, यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows.
ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. दिस इज व्हाट हाउ weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम. पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है. तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions, muscle and nerve junction, muscle and bone junction, two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ.
एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as अंगन्यासा and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. दिस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. सो एवरीबडी इज एजुकेटेड. यू नो एटलीस्ट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड वात, पित्त, कफ. most of the people do not know what it is. They try to make an idea, but material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things.
So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now now being busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics.
When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root उदाना. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose. In Prana Shakti diagnosis, यही Prana Shakti diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक module सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps
And then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Moushumi ma'am, who has attended the Ashtanga Chikitsa classes, and she would talk about her journey of Ashtanga Chikitsa. Moushumi ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Moushumi Yes. ma'am, Good are evening. you there? Yes. You are audible. Okay. Moushumi Mahapatro ma'am. Yes. So, पहले तो मेरा Thank you so आदरणीय much. स्वामी जी को प्रणाम है और मेरे जितने बड़े भाई बहन हैं सबको प्यार भरा नमस्कार और जितने छोटे भी देख रहे हैं उनको प्यार है. तो आज मैं मेरा जर्नी Ma'am? जी बोलिए. हेलो. हाँ ठीक है, आपका आवाज बीच में कट रहा था इसलिए. ओके. It's okay. ओके. तो आज मैं अपना जर्नी अष्टांग चिकित्सा के बारे में मैं बताने जा रही हूँ. इस जर्नी से पहले मैं अपना हिस्ट्री एक बार आपके सामने बोल देती हूँ. I was suffering from back pain more than 25 years. ओके. तो मेरा 2 स्पाइन सर्जरी हो चुका है, एक 2017 में और एक 2021 में. I have 15 screw and 2 titanium plates in my spine. तो आप इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा पेन कितना होता होगा. So after my second spine surgery in 2021, I was diagnosed with fibromyalgia. ये एक ऐसा डिजीज है जो नर्व डैमेज या वीक नर्व के वजह से होता है और ये जब होता है आई कैन एक्सप्रेस द पेन फ्रॉम हेड टू टो. आपका हेड में भी पेन होगा, एल्बो में भी पेन होगा, आपका शोल्डर में भी पेन होगा, आपका थाइस में, बैक में, एवरीवेयर पेन होता है जो कि अनबियरेबल होता है. एंड एज ए प्रोफेशन आई एम ए टीचर.
I am teaching the small kids. So my profession demands hopping, running, skipping, dancing with the kids. जब मुझे फाइब्रोमियल्जिया डायग्नोसिस हुआ तभी मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए मैडम, आपको एक ऐसा डिजीज हुआ है जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने बोला ये कौन सा डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं है? तो उन्होंने बोला कि फाइब्रोमियल्जिया है, जो नर्व की वजह से आपको इतना दिक्कत होती है, तो आपको हम नर्व का मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन आपका आउटर पार्ट में, बॉडी में आउटर पार्ट में आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटर पार्ट में अगर प्रॉब्लम होता तो हम आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपका इनर पार्ट में आपका प्रॉब्लम है, हम सिर्फ आपको नर्व का मेडिसिन दे सकते हैं। जिस दिन मैं ये सुना, आप लोग मतलब विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन मैं खूब रोई। मैंने कहा ऐसा कौन सा डिजीज हो गया, एक तो 25 साल का बैक पेन, ऊपर से स्क्रू, ऊपर से फाइब्रोमियल्जिया, में बहुत रोई। तो उसी दिन शाम को मैं ऐसे फेसबुक में देख रही थी, तो अभिसा हीलिंग सेंटर एंड अष्टांग चिकित्सा के बारे में एक छोटा सा एड आया। तो उधर एक लिखा था कि इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ न्यूरोमस्कुलर पेन तो प्लीज ज्वाइन इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि भाई मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके देखूं, तो क्योंकि मेरा तो इतना मेडिसिन में खा चुकी हूँ तो कुछ काम ही नहीं करता है। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है तू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके देख। फिर नहीं ज्वाइन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो उन्होंने बोले कि आप सितंबर 9 को एक क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप इधर आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास में। तो मैंने पहले अष्टांग चिकित्सा के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था ना, कभी मैंने इसके बारे में मैंने पढ़ा था, सच बता रही हूँ। तो फिर मैंने क्लास ज्वाइन किया, तो हमारे ग्रुप में 30 पीपल थे, 30 जन का एक बैच था। तो मैंने सोचा मेरे से भी छोटे भी हैं, मेरे से बड़े भी हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम भी हैं, तो ये लोग कौन सा हिसाब से हमको मतलब कि एक्सरसाइज सिखाएंगे, मुझे कुछ भी क्लू नहीं था। फिर हमारा मेंटर पूजा मैम थे, फिर गुप्ता जी थे, दे वर एक्सीलेंट, दे वर ऑसम। तो मुझे लगा कि डिफरेंट एज ग्रुप का प्रॉब्लम कैसे ये लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बोलती थी कि मैम मुझे फाइब्रोमियल्जिया है, तो सारे बोलते थे डोंट वरी मैडम, आप ठीक हो जाओगे। कोई बोलता था कि मेरा बैक पेन है, तो बोलते डोंट वरी आप ठीक हो जाओगे। मैं तो मतलब क्लूलेस थी कि कैसे हो सकता है, और 1 to 1 इंटरेक्टर कैसे हो सकता है। तो जब मैं क्लास स्टार्ट किया तभी मैंने देखा कि ये जो मेंटर लोग हैं ना, दे वर एक्सीलेंट, 1 to 1 इंटरेक्शन करते हैं, हमको सिखाते हैं, और हमको बोलते हैं कि आप हमारे सामने ही करो ताकि हम आपको रेक्टिफाई कर लेंगे। फिर भी मुझे ये अष्टांग चिकित्सा के बारे में तभी तक मुझे विश्वास था ही नहीं, मैं कर रही थी। तो उसी टाइम पे, मतलब मैं मुंबई से हूँ, उसी टाइम पे यहाँ पे डांडिया का जो है, गरबा का, वो सब कुछ फंक्शन, नवरात्र का फंक्शन चल रहा था। तो एज ए टीचर हमारे स्कूल में एक गरबा डांस का प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा कि मैं अष्टांग चिकित्सा कर रही हूँ, जो कि आप मतलब इनहेल करके एक्सेल करके मुझे बताया जाता है, तभी इसको मैं थोड़ा ट्राई करूँ। तो यू वोंट बिलीव कि मैंने मोर देन 1 आवर मैंने डांस किया, खूब डांस किया। एक साइड में मेरा डर था कि डांस करने के बाद फिर से पेन होगा, एक साइड में विश्वास था कि ये जो कर रही हूँ, मतलब ये अंदर से जो ये लोग जो सिखा रहे हैं, तो आई वॉज फीलिंग गुड, तो हो सकता है कि पेन ना हो। मतलब आई वॉज इन डिलेमा, हो सकता है पेन हो सकता है पेन ना हो। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ स्वामी जी, या ये मेंटर लोग जो बोलते हैं, आई कुड नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मुझे उस दिन पेन नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे इसके बारे में ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ता गया, क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी आती थी, सारे बोलते, एक ऐसा ही टाइम था कि मुझे डॉक्टर बोला आप पागल हो गई हो। मैंने बोला क्यों पागल क्यों मैं हो गई हूँ? तो क्योंकि ये फाइब्रोमियल्जिया का उनको समझ में नहीं आता था। बोले ऐसा थोड़ी मैडम पेन होता है, कभी आप बोलते हो यहाँ पे पेन, कभी मुंडी पे पेन, कभी पैर में पेन, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कि मेरा तो रोना छूट जाता। मैंने कहा एक तो मैं ऐसे ही अपाहिज, ऊपर से मैं पागल भी निकला। तो मुझे मतलब कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू स्वामी जी, उन्होंने जब बताया ना कि हमारा जो इनसाइड में जो है, माइंड है, हार्ट है, सोल है, टिश्यू है, हम कभी उनके बारे में कभी भी नहीं सोचे हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम दौड़ेंगे, साइकिलिंग करेंगे, जिम जाएंगे, हमारा आउटर बॉडी बनाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ, आफ्टर डूइंग दिस अष्टांग चिकित्सा I am feeling very happy. I feel very strong from inside. मुझे ऐसा लगता है ना, अंदर से ना कुछ पहले जैसे टूटा फूटा था, अंदर से कुछ स्ट्रांग हो रहा है। और आजकल जैसे पहले जमाने में इतने सारे साधन अवेलेबल नहीं था, आजकल जैसे आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, तो इतने जरिए से मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्वामी जी का जो भी है स्पीच आ रहा है या जो भी योगा वगैरह सिखा रहे हैं, तो I just want everyone, if you want to heal your mind, soul and body, please join in Ashtanga Chikitsa. Really happy for that. And I am really gratitude to Swamiji and to all the mentors for teaching us such a nice thing that I didn't have any knowledge about it. Thank you so much. Thank you so much, Moushami ma'am, for sharing your journey of Ashtanga Chikitsa. Now I would like to invite Kuljit sir to share his journey. Kuljit sir, you can unmute yourself and switch on your video so the participants can see you. Rachna ma'am. Yes, yes, ma'am. हाँ, और एक चीज मैंने ऑफलेट मेरा हुआ है, मैंने शेयर करना भूल गई। एक्चुअली मेरा आईज के चारों तरफ ना डार्क सर्कल है, ठीक है। अच्छा। तो मुझे हमेशा ही डार्क सर्कल मुझे गंदा लगता था। ऑफलेट मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि तेरे डार्क सर्कल थोड़ा लाइट होने लगे, मे बी ड्यू टू दैट अष्टांग चिकित्सा जो भी बोलिए, सो थोड़ा थोड़ा वो डार्क सर्कल भी लाइट होने लग गया है। सो फॉर दैट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। Thank you so much, ma'am. And all the best for your onward journey. Yes, thank Kuljit you. sir, you can please unmute yourself and let us know about your journey of Ashtanga Chikitsa, please. Kuljit Chatterjee, sir. Can you hear me? I can't hear you. Kuljit Chatterjee, sir, I can't hear you. you can't hear me. No, Now can you hear me? I put my phone volume loud. I still can't hear you. I can hear No, you very faint. Okay, my volume is full, ma'am, but I don't know why. No it's- problem, no problem. Kuljit ma'am, you can speak. We can hear you properly. You can hear me? Yes, we Yes, can yes. hear you. Shall I speak then? Yes, yes. Okay. I am 79 years old. I might be the oldest in the group. I was suffering like anything. I was actually unable to walk or unable to do anything because I had a traumatic time. My husband was sick and he passed away last year. After that, it was just terrible for me. Can you hear me? Yes, ma'am, very clearly. Okay. So I started having severe neck pain. I couldn't move my neck either side. And then I have this back pain, knee pain, digestion problem, constipation, and also peripheral nerves in the feet. I chanced upon this program from Facebook, I think. And because I refused to go to Pilates, to do Pilates or yoga, etc., considering my age, I didn't want to hurt myself. So when I saw this Ashtanga Chikitsa and the way it was described, I thought that I chanced upon a miracle. And this was what I should do. So I followed the classes, and Madam Pooja and Gupta ji and the rest of the team, they have done an excellent job. In fact, hats off to those who taught us. They have borne
everything patiently, all the questions, and they have spelt out every exercise very clearly. Although I will be telling an untruth if I say that I was able to do every single exercise every day. I couldn't, especially the bending ones and the ones where you sit cross-legged. So as Swamiji advised, I didn't go in for that. I did try a little, and I'm still trying. But I do the other exercises, and I divided it to 2 sessions, the morning session and the evening session. So as much as I could do, I've been doing, but I have great faith because miraculously my energy started building up. I've been able to go out, go to the mall and easily, and I feel like doing other work. And second, my neck pain is nearly cured. I think just 20-30% left. Then my digestion problem has improved. My constipation has improved. My knee pain, I won't say it has gone away. It is still there. And even my back pain is hardly there. So overall, I would say that this is the ideal exercise for anyone because it is based on healing the inside. And it is something that everyone should try. So I will definitely spread the word and get more people in because it has unfolded my life into an active life. I was very active. Once upon a time, I was a mountaineer. Anyway, that's long ago. But, and I was a sprinter also. Anyway, now I'm feeling much, much better. And I seem to have regained new life. So, but I would advise every participant to keep trying, to keep doing, because I don't think everything gets cured in a day or 2 or months. It might take a year also. But this Kumbhak therapy is the therapy, and it does help very much. Thank you so much, everyone, for introducing me to this. Thank you. Thank you so much, Kuljit ma'am. It's inspiring to hear about your journey of Ashtanga Chikitsa. I'm sure the participants feel the same. Now I would like to request Anilji to please share the program details. A lot of people in the chat are writing that they eagerly want to join the program. To please share the details. Thank you so much. Namaskar, everyone. Just give me a few seconds and I'll share my screen. Rachna ji, are you able to see the screen? Yes. Okay, good. All right, so let's get to know the details very quickly as a lot of you already are waiting for it. जल्दी से हम जान लेते हैं इसके details, program details क्या हैं. First of all, this is a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. ये एक guided program है जो expert Kumbhak mentors हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो स्वामी जी द्वारा ट्रेंड है. पहली बात तो ये है. दूसरा, जैसा कि स्वामी जी बता चुके हैं वेबिनार अपने वीडियो के अंदर कि 3 मॉड्यूल्स हैं इस पूरे प्रोग्राम में. देयर आर 3 मॉड्यूल्स इन द होल प्रोग्राम, मॉड्यूल 1, 2 and 3, और we can call it Vath module, Pitta module and Kapha module. Duration of each module is 21 days or 3 weeks, and the total duration becomes 9 weeks for all 3 modules. तीनों मॉड्यूल्स की जो ड्यूरेशन है 21 दिन की है एक मॉड्यूल की, तो टोटल 63 दिन का पूरा प्रोग्राम है. यहां पर लिखा है 9+1. Why 1 week extra? We'll get to know in a short while.
ये एक एक्स्ट्रा वीक किस लिए है ये अभी थोड़ी देर में हम जान जाएंगे. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning class or the main class and one will be the mentoring or the practice class. हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी लाइव जूम ऐप के ऊपर, एक जिसमें से मेन क्लास होगी और दूसरी होगी प्रैक्टिस क्लास. What are the next step? You pay the program fee and we have a special webinar pricing for people who have stayed back. After that, you fill the participant onboarding form so that we can create the login credentials for course access. What is this course access? These are recordings that you will be able to access. So after that, you start attending your classes starting with module 1. तो ये 3 steps हैं. आप प्रोग्राम फी पे करते हैं, फिर पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरते हैं और फिर क्लासेस अटेंड करना शुरू करते हैं. टोटल क्लासेस फिर से बता देता हूं. अगेन आई विल लेट यू नो. 3 मॉड्यूल्स हैं. देयर आर 3 मॉड्यूल्स. Each module has 6 classes, out of which 3 are learning and 3 mentoring or the practice classes, which is 21 days or 3 weeks. So same goes for module 2 and module 3 also. Total classes 18 plus 1 customization class. What is this customization class? ये customization class क्या है? ये अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे. We'll get to know it about the customization class in a short while. So total engagement is of 10 weeks. 10 हफ्ते का टोटल एंगेजमेंट रहेगा. क्लास स्टार्ट डेट फॉर बैच 105. 105वां हम बैच शुरू कर रहे हैं 14 नवंबर से. 14th नवंबर at on Monday at 7 PM the batch number 105 is starting. And then after completion of it, module 2 and module 3. So ultimately you will be completing all 3. सभी मॉड्यूल्स आप कवर करेंगे, सभी कंप्लीट करेंगे. मेंटर क्लासेस थर्सडेज को होती हैं मॉड्यूल 1 के लिए. मॉड्यूल 2 के लिए होंगी फ्राइडेज को और मॉड्यूल 3 के लिए होगी सैटरडेज को. ये सभी हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप चैट में और व्हाट्सएप ग्रुप और जूम चैट के ऊपर. विल शेयर ऑल दीज डिटेल्स, ऑल द क्लासेस, द डेट, एग्जैक्ट डेट्स आल्सो इन द जूम चैट एज वेल एज इन व्हाट्सएप. व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? दीज आर लाइव सेशंस. जैसा कि आप जान चुके हैं ये लाइव सेशंस रहेंगे. मेंटर्स वॉच ऑल द पार्टिसिपेंट. जो मेंटर्स हैं वो आपको देखते हैं, जैसा कि अभी आपके साथ शेयर किया गया कि वो तभी आपको कराकर देखते हैं. यू हैव टू परफॉर्म द क्रियाज ऑन द कैमरा सो दैट दे कैन करेक्ट यू एंड गिव यू फीडबैक. देन देयर विल बी रिटन इंस्ट्रक्शंस. लिखित निर्देश भी मिलते हैं आपको और सेशन की रिकॉर्डिंग होती है जिसको आप अवेलेबल कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के. आगे चलते हैं. काफी चीजें एक्स्ट्रा होंगी जो जैसे मेंटल प्रैक्टिसेस, यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव. माइंड यू दिस इज नॉट अ डाइट प्लान, दिस इज अ डाइट पर्सपेक्टिव. हाउ टू यूज फूड, हाउ टू कुक फूड इन अ वे so that it supports your body and not harm it. Then simple detox processes will be there and a lot of knowledge will be shared with all of you. Now I've written yearly expenses on the disease that you could already be, suffering from. And this is just to manage the disease that we are into. Why I'm talking about this? Because we need to know where our money is going and if it is making sense to spend this kind of money. Because the alternative that I'm going to present before you, which is Ashtanga Chikitsa or Kumbhak therapy, that will be so economical that everyone can afford it. So I've written doctor fee between 6,000 to 12,000. That these are yearly figures. You could be spending based on the city that you are living in. Then if you are into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 you could be spending, and medicines another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, this goes to 33,000 to 72,000 per year. And if you are using allopathy, we all know the side effects of that, so we won't talk about that so much. So this is important to know so that we know where our hard money is going. Because if it's going into something which is permanent, like Ashtanga Chikitsa, then it makes more sense. So let's get further on this. Before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. ये जानना भी जरूरी है ये program किन लोगों के लिए नहीं है, ताकि ये clear हो सके ये किन लोगों के लिए है. This program is not for people
who are looking for a magic pill and wants results tomorrow only. See, the problem that you're into, जिस आप प्रॉब्लम में है, जो हेल्थ इश्यूज आप सफर कर रहे हैं जिससे, वो एक दिन में नहीं आए हैं तो एक दिन में वो जाएंगे भी नहीं, ये समझने की जरूरत है। और मैजिक पिल क्यों लिखते हैं हम? जैसे कि मोस्टली हम एलोपैथी की बात करते हैं, कुछ भी हमें छोटी से छोटी बीमारी हो, हम तुरंत एक गोली ले लेते हैं, बिकॉज ये बचपन से आदत बन चुकी है। इट्स बीन अ हैबिट सिंस चाइल्डहुड दैट एनीथिंग, I mean, if you get a cough, cold, anything you just go walk to a chemist and that you pop a pill. प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, बट हमें लगता है कि प्रॉब्लम दूर हुई है। तो ये कुछ वैसा नहीं है। प्रॉब्लम एक रातों रात नहीं आई है तो रातों रात जाएंगी भी नहीं। Problems won't go overnight since they haven't come overnight. So that we have to understand. This is not for those who are not ready to work in the body. अपने शरीर के ऊपर इंटरनली काम करना पड़ेगा ताकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, फंक्शनिंग है, वो स्ट्रांग हो पाए। ज्यादातर जो डिजीज है वो डीजेनरेटिव है, यानी कि ऑर्गन्स कमजोर हो रहे हैं। तो जब तक उन्हें स्ट्रांग नहीं करेंगे, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जा सकते। एंड दिस इज नॉट फॉर दोज हु कैन नॉट इन्वेस्ट 80 to 90 मिनट्स एवरी डे ऑन देमसेल्व्स। अगर आप 80 से 90 मिनट डेली अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो भी शायद ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत करते हैं इतना टाइम लगेगा। इन द बिगिनिंग इट विल टेक अबाउट 80 to 90 मिनट्स। एज यू लर्न, एज यू कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे, सो द टाइम विल रिड्यूस टू मे बी 40 to 50 मिनट्स, बट दिस इज द काइंड ऑफ टाइम यू विल बी रिक्वायरिंग इनिशियली। So if you are not ready to invest this kind of time, then this therapy is not for you. And this is not for those who are impatient. We understand that when you are into pain, patience becomes less, but still, if you need to go into a direction where there's a permanent solution, which is natural, you need to be patient. So we need to, tell you this very clearly. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd like to just talk about it, this point, because it's very important. A lot of people tell us that you said that it's a free program. They confuse the free webinar with the free treatment, the 9 weeks therapy, which I'll be talking about what all you'll be getting. So that requires a lot of attention from our side, daily tracking and everything, which I'll be talking about in detail. So this cannot be free. The webinar is free because this is an introduction to Ashtanga Chikitsa. So please be very clear about this. And if you're looking for tips in the webinar, then this is not for you, because any permanent therapy, any therapy does not work on tips. Because had this been the case, everybody would have, looked at, watched the videos on YouTube, because there are a lot of tips, thousands of videos will give you some tip of the other. So if you're looking for a permanent solution, any therapy, maybe this or any other therapy that you want to take, it has to start from somewhere. It's a full program, no tips. Now, what all you get, let's talk about this, because this is very important. Prana Shakti diagnosis for root cause determination. Swamiji talked about in the video. This is a diagnosis which is non-medical, and this is an online. Now, a lot of people ask how it can be done online. Because it's a unique diagnosis, you'll get a form. You'll get a form in which you'll be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. And you have to write those down. Then second thing which you have to do is to write down about the problem in detail, all the health issues that you are, that you have. And the third thing that you'll be doing is uploading a selfie photograph, shoulder and above, in which there has to be no specs. चश्मे नहीं होने चाहिए उसमें आपकी eyes के ऊपर, आंखों के ऊपर. And in case of ladies, no makeup also. When these things go to Swamiji, he is able to determine the weak factor or the weak force. If you remember in the video, Swamiji talked about the 84 forces through which you work every day, which are responsible for the organ strength, organ functioning, their coordination amongst each other, which force has become weak, due to which you are into your current health issues, that is being found out. Once the root cause is determined, then only a solution is possible. Otherwise, we'll just be experimenting. So that has to be understood. This alone, Prana Shakti diagnosis alone, could be worth the total cost of this program, which I'll be announcing very shortly.
Second, you get one main class of 60 to 90 minutes. Why 60 to 90? 60 is the actual class. 20 to 30 minutes, we take up the questions and the mentors answer those questions. Okay, so that's why. Then practice class, again, 60 to 90 minutes, you get it. And then online course access for 6 months. This is the access to the class recordings, which will be available to you for 6 months. After the 10 weeks, when the program gets over, the recordings will remain with you for 6 months, which is enough time to learn all kriyas by heart. Okay. Videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? The class recording is of the whole class, about 80 to 90 minutes. But these are short videos of all the kriyas. Some kriya may take 2 minutes, some may take 10 minutes. You don't have to watch the whole class recording if you don't have time. So these are separate videos of all the kriyas. Then written instructions in English and Hindi as well, which you can download, take a printout and follow those instructions to do your daily kriyas. Some people learn by watching, some people learn by written instruction. Whichever is your style of learning, both are available to you. Then you'll be added to a WhatsApp group, and this will be your home for the next 10 weeks. ये आपका घर जैसा कि मैंने बताया 2 दिन आप हफ्ते में लाइव रहेंगे, बाकी 5 दिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उस समय अगर कोई आपके मन में सवाल, कुछ शंका, कुछ डाउट होता है तो आपने इस प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना है. दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप वेयर यू विल बी आस्किंग ऑल योर डाउट्स, योर क्वेश्चंस. आवर मेंटर्स विल गाइड यू, आंसर एंड गाइड यू स्टेप बाय स्टेप. Sundays the mentors are off, so 6 days a week you'll get answers to all your questions, everything to do about kriyas and the program. So this is a support system that we put into place. Then individual participant progress tracking feedback. Every day you'll be getting a form and you'll be writing about your progress. So that way we'll be able to track if you're progressing or not, and if you're not progressing, what is the reason, that we'll try to find out. Then therapy customization for each participant in the 10th week. जैसे कि मौसमी मैम ने बताया कि वो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि वो सबके प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉल्व करेंगे एक ही प्रोग्राम के थ्रू. सो दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस. Therapy customization is all about, remember, if you the first point I told about Pran Shakti diagnosis, based on the Pran Shakti diagnosis, your therapy and the kriyas will be fine-tuned and customized as per the diagnosis, as per your health issues. So you will continue with these customized practices on after the 10th week. So every person will get a different kriya, will get separate kriyas. So that's how individual problems will be addressed through this. So एक question आता है, one question comes, then why 9 weeks? Why can't we start it from the first week? Right? There's a reason for it. The body needs to be prepared to receive those customized practices. In these 9 weeks, 3 main things happen. First, the Vata, Pitta and Kapha of the body are balanced. Second, like Swamiji also told in the video, there are 3 basic alignments, structural alignments: navel, thighs, and the chest factor. That is done. And the third main thing that happens is, there are a lot of things that happen, but these are the main ones. The third thing that happens is, you are taught controlled exhalation. ये therapy जो है controlled exhalation के ऊपर based है, and this is the reason if you are into Kapalbhati, if you do Kapalbhati on a daily basis, you are advised not to do it for the next 5 to 6 months when you are taking this therapy. Okay, so when the body is ready, then in the 10th week the kriyas are customized so that you are able to do the fine-tuned and customized practices based on your diagnosis and on your health issues. 10th, extended support for 30 days after the program is over. 10 हफ्ते के बाद जब प्रोग्राम खत्म होता है तो आपको 30 days extra मिलते हैं सपोर्ट के लिए. You can keep on asking questions, your doubts, but again, if you're doing your practices daily, you'll get daily doubts, and if you clear those doubts daily, then after 10 weeks there won't be any doubt at all, right? But still, some people, they fall ill, something happens and they are not able to attend regular classes, so extended 30 days of support is given to all the participants. So this is the end, and now the program fee which you must be waiting for, 14,500
including everything, 18+1 class for the customization, your support, 30 days extra support, access, course access for 6 months, everything included. But as I promised you in the beginning that there'll be a special webinar pricing. So let's get to know what that is. Just 6,500 for the complete 63 days of this therapy, or the 9 weeks of this therapy, right? So it includes everything what I just talked about, all the 10 points and everything. So this is so affordable that you can start your journey towards a better life, through a medicine-free, pain-free life. How to enroll? You pay the program fee, then you post the payment receipt in the WhatsApp group. Then you fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you. And then you join the class WhatsApp group, which I talked about, where you will get support. And then you start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa. Payment details will share in the WhatsApp group as well as in chat here. Then I'll just like to stop here for some time and talk about a super team at your service. It's a really super team. Like whosoever you will be talking to, like Kuljit ma'am, she also talked about the team. Mosby ma'am, she talked about the team. तो पूरा टीम है जो पूरा प्रोग्राम मैनेज करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है. जितना भी खूबसूरत ये प्रोग्राम है, अगर एक प्रॉपर टीम नहीं होगी उसकी देखभाल करने के लिए, पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो शायद उतना बेनिफिट ना मिल पाए. सो we have Rachna Shrimal Bothra, she is the program director and the host of this webinar. Shalini Bhagwat, she is the class manager. Ashwini Kumar, she is the IT manager. Mentors, Pooja Chopra, Ranjana Swain, Sukesh Raj, R.D. Gupta ji, Soni Chhapriya ji, Aruna Narayana, Nina Rai, Suruchi Goyal. We have a lot of mentors, and this is the reason why we are able to support each and every participant, although in a group, but we are able to do that because we've got enough mentors. We don't cut corners. So enough mentors are there to support you. So just be, assured that you will be taken care of. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge, and she'll be the person who you will be talking to the most before starting your classes for enrollments. Then Anil Chand, that's me. I'm the admin and I take care of enrollments also. And I'll be answering most of your questions in the WhatsApp, because due to shortage of time, Swamiji may not be able to answer all your questions right now. But don't worry, please post your questions in the WhatsApp group after this webinar, and I'll be answering all those questions. Himanshu Reddy, he is the technical person. He takes care of all the video upload, the uploading of written instruction, the app downloads, everything. So he'll be the person you'll be talking to if you have any problem to access your recordings, your written instructions, anything to do which involves technology. Then we have Anita ji. She'll be the person who will be giving you a call and talking to you on a personal level, individually. In the WhatsApp group, you can ask questions in the group, and then Anita ji, you'll get her number also, and she'll also call one by one. Normally she calls about 25 to 30 people every day. So if you want to talk before that, you can do that. So with this, I come to the end of my part of the presentation, and I'll hand over back to Rachna. Namaskar. Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. Swamiji has joined us. He will be answering all your questions. I'm sure the participants are waiting for that. So we just take up the questions one by one in the chat box. Can we have Swamiji on spotlight? Just 1 minute. There on the spot. Yes. He's on spotlight. Okay. Namaste, Swamiji. Good evening. So we'll take up the questions one by one. Here's the question from Shobha ma'am. She's suffering from severe back pain, knocking sound from the knees. Okay. People are facing a lot of problems And nowadays. very difficult to walk. Yeah, of course. So why this is happening? ये इतने problem क्यों हो रहा है सभी को आज के time पे? So I'll tell you, I can tell you many perspectives why it is happening.
and with all your medicine, the condition is worsening. It is not improving anymore. आप सोचते हैं आज दर्द की दवाई ले लिया आपने तो मेरा ठीक हो गया है, और जब आप जवान होते हैं तो कुछ समय के लिए वो ठीक रहता है. हाँ? When your body has resilience and the capacity to recover, it recovers, and you put the credit on your medicine. आपका शरीर रिकवर अपनी स्ट्रेंथ पे करता है, लेकिन आप उस दवाई को क्रेडिट दे देते हो. फिर आप खूब दवाइयां खाते हैं और एक बार बिस्तर पे फिर आ जाते हैं. ऑर्गन डैमेज होता है, प्रॉब्लम आती है, nobody takes responsibility, isn't it? Everybody will tell you, go to a doctor, go to a doctor. But when you are on a bed, हार्ट फेलियर हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, लिवर खराब हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इश्यूज, पेन फैक्टर्स, जॉइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, रिमेटॉइड, व्हाट नॉट, सब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता. Nobody takes responsibility of that. So why I am saying this? Because if you remember your grandfather, grandmother, अगर अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें तो they were much more healthier than you. So whatever we are doing, we are increasing the episodes of disease. जो भी हम कर रहे हैं उससे हम बीमारी बढ़ा रहे हैं. कमर दर्द, lower back pain is a very, very common phenomenon nowadays. It's a very common phenomena. Even youngsters are facing that. एक यंगस्टर भी फेस कर रहा है वो. तो आपको मैं एक बड़ा अलग नजरिया बता रहा हूं जो कि आप समझ सकते हैं. I'll also tell you those things which you are trained into. ऐसे शब्द भी बताऊंगा आपको जिसकी आपकी ट्रेनिंग मिली है, मगर ऐसे भी आपको बता रहा हूं जो आप सोचते नहीं है मगर आप समझ सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस, देयर आर टू फैक्टर्स इन योर बॉडी. आपके शरीर में दो चीजें हैं, है ना. इसको ऐसे समझिए, हीट एंड कोल्ड, गर्मी और ठंडक, है ना. दो टेम्परेचर पूरी दुनिया को चलाते हैं. गर्मी क्या करती है, हीट क्या करती है, आपके बॉडी का हीट जो है वो आपको नीचे की तरफ लेके आता है. यानी हीट हमेशा आपको, आपके एनर्जीज को, आपकी फंक्शनिंग को नीचे की ओर पुश करता है, और ठंडक जो है उसे ऊपर की ओर पुश करता है. तो जब भी आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, व्हेन यू गेट इनटू अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी भोजन जो कर रहे हैं इट इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड इन योर बॉडी प्रॉपर्ली, फूड व्हाटएवर यू आर टेकिंग वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है. तो क्या हुआ, वो नीचे जो हीट जानी चाहिए ना जाती नहीं है, वो ऊपर आ जाती है, वो प्रॉपर नीचे नहीं जा पाते. फिर क्या होता है, डू यू नो, व्हेन यू गेट इनटू फीवरिक सिचुएशन, योर हेड इज वार्म बट योर फीट इज कोल्ड. बीमारी का मतलब क्या है, सिर गरम, पांव ठंडा. और हेल्थ का मतलब क्या है, व्हाट इज हेल्थ, पांव गरम, लेग्स वार्म एंड हेड कूल. सिर ठंडा होना चाहिए ना. Now, how many of you are facing headaches and migraine and pain in the upper region? हाँ, कितने लोगों को है, बहुत लोगों को होगा. So what has happened? You have reversed the flow. आपने इस फ्लो को उल्टा कर दिया. आपने इस फ्लो को उल्टा कर दिया. Now this is a risk for the body, isn't it? ये रिस्क है ना आपकी बॉडी के लिए कि आपने द फ्लो ऑफ लाइफ को उल्टा कर दिया. Heat should flow down and coolness should flow up. Now I'm telling you, when these two things are combined, it becomes opposite. Opposite होगा ना, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है. That is why you are said कि immediately after food you can't have cold water, है ना. तो आप तो आजकल कभी भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड चीज का इंपैक्ट कैसा होगा, ये आपके लाइफ एनर्जीज को ऊपर की ओर पुश करने लगता है. तो जब ये ऊपर की ओर पुश करने लग जाएगा, एंड गोइंग डाउन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेयर विल यू गेट द मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन योर बॉडी. ये दो टसल का रस्साकस्सी चल रही है जो आपने आपके लाइफस्टाइल की वजह से, इसका असर कहां होगा सबसे ज्यादा, ऑन योर स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी में, बिकॉज योर स्केलेटल सिस्टम इज सपोर्टिंग यू बीइंग इन लाइफ, बीइंग अलाइव. तो दो तरीके से लोगों को असर आएगा. People who have weakness in upper part of the body, they'll get cervical. People who are weak in the lower part of the body will get back pain. है ना, जो टसल है तो वो वहीं पे होगा ना जो आपका वीक पॉइंट है. It will impact your weak point more, isn't it?
Now this is one aspect we are not understanding. हम समझ ही नहीं रहे. This is one aspect we are not understanding. Now, how you can establish yourself down, or how you can be protected from this tug of war, was actually designed by, a long time back in India by our rishis. They used to call it Dinacharya, Ritucharya. Now that knowledge is almost gone. You think it is written in some Ayurvedic text? No, nobody is understanding that. सभी हमारे पास available नहीं है, because it has been continuously destroyed. You know, we don't love the empowerment of somebody else. अभी इंडिया के खिलाफ में बहुत साजिश चलेगी, आप देख लो. Why? Because we will get empowered if you bring these aspects up. अगर हम अपने शरीर को मजबूत कर लें, क्योंकि दुनिया तो बीमार हो रही है ना, तो विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड विल गेट एम्पावर्ड. तो दूसरे को नुकसान है ना हमारे एम्पावरमेंट से. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अभी क्या करना, दूसरा पक्ष, सेकेंड तरीके से बता रहा हूं, दूसरे तरीके से बता रहा हूं. यू नो हाउ मेनी वेज यू आर क्रिएटिंग रिस्क फॉर दिस बॉडी, कितने तरीके से आप शरीर के लिए रिस्क बना रहे हैं. डू यू थिंक द एनवायरमेंट इज सेम इन द लास्ट 50 years? इट्स रिमेन सेम. क्या वातावरण वैसा ही है जैसा 50 साल पहले था? वी हैव चेंज्ड इट, वी हैव चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस एनवायरमेंट. वातावरण के जो कारक है ना उसके अंदर, वो हमने बदल दिया, पोल्यूट कर दिया सारा. अगर वातावरण हमने बदल दिया, इफ यू गो टू अ डिफिकल्ट टेरेन, एक बहुत मुश्किल जगह पे जाएंगे तो आपको शरीर में मुश्किल आती है ना, सांस लेने में मुश्किल आती है, चलने में मुश्किल आती है, isn't it? But if we have continuously destroyed the environment we are living in, तो आपके शरीर को मुश्किल नहीं आनी चाहिए क्या? आएगा ही ना. सो हमने तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारा है, तो अब आएगा ही आएगा. अच्छा, दूसरी चीज, आपने कभी गाय को मांस खिला के देखा है? यू मेक अ काउ ईट नॉन-वेज, शी विल नॉट ईट. You make a lion eat vegetarian, a lion will not eat that, isn't it? तो उनका फिक्स है, उनको मालूम है कि उनको क्या खाना है. Only human being have a problem. We are putting everything which is we are not designed for. आप एक गाड़ी चलाते हो ना, पेट्रोल की गाड़ी, उसमें डीजल भरा देते हो, डीजल डालते हो उसके अंदर? नहीं डालते. बट इसके अंदर आप कुछ भी डालते हो. The moment a kid is born, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसका एक टेन्योर, एक पूरा का पूरा लिस्ट बनता है ना, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन का बनता है ना. आपको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. डू यू थिंक केमिकल्स आर समथिंग वी आर डिजाइन फॉर? क्या आपको लगता है कि ये जो केमिकल वैक्सीन और दवाइयां आप खा रहे हैं, इसके लिए हमारा शरीर डिजाइन है? अगर ये हमारे लिए हमारा शरीर डिजाइन होता तो ये पेड़ों पे लटक रहे होते ना आपके, ये पैरासिटामोल्स एंड वैक्सीन एंड कोरोना का वैक्सीन और दिस मेडिसिन और दैट मेडिसिन, वो तो पेड़ पे लटक रहे होते हैं, आप निकाल के तोड़ के खाते रहते हैं उनको. सो योर बॉडी इज नॉट डिजाइन्ड फॉर केमिकल्स, बट यू स्टार्ट पुटिंग केमिकल्स द मोमेंट यू आर बॉर्न, एंड यू कॉल इट इंटेलिजेंस, गुड थिंग. तो जब से आपने ये उल्टा बोलना शुरू कर दिया है ना, तो आपका शरीर भी खराब होना चाहिए. So when you put any chemical inside your body, आप जब डालते हैं तो आपको नुकसान होगा ही होगा. आपको इमीडिएटली शायद नहीं दिखाई दे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद में आपको दिखेगा ही. 100% guaranteed you will get into problem. So tell me, how many people used to have diabetes 100 years back? 100 साल पहले किसको डायबिटीज था? थायराइड इश्यू, किसको थायराइड था? डू यू रिमेंबर योर ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, दादा दादी याद है किनको डायबिटीज था, थायराइड था, है ना, हार्ट डिजीज था? 100 years back, how many people used to have heart disease? ब्लड प्रेशर इशू. 100 साल पहले कितने लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था? How many people used to have ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? Cancer is increasing at the rate of 12% every year. Heart attack has become the number one cause of death at this point of time. Thyroid is becoming epidemic. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है.
There is no treatment for all these chronic condition, but you still go to the same doctor who says इसका treatment नहीं है. क्या कमाल के लोग हैं आप लोग. You are not even looking at some other kind of a treatment. सबसे पहले वहीं जाते हैं. So what happens? This is a risk. Medicine is a risk for the body. अब तीसरी चीज आ जाते हैं. Food that you eat is genetically modified. सब GM crop है कि नहीं है? Everything has got genetically modified, isn't it? Now your liver is something or a part of your body which understands, or it has an intelligence to understand food. लिवर आपका दूसरा ब्रेन है, वो समझता है क्या भोजन मेरा है, क्या भोजन मेरा नहीं है. Right? What is designed for me, what is not designed for me. So if you put everything which is a risk for your body, the first step of your metabolism, liver will get impacted. उसको असर होगा कि नहीं होगा? आप उस पर जबरदस्ती कर रहे हो तो असर होगा. तो what will get impacted? उसको क्या कहते हैं? जब खराब होगा तो, कोई चीज खराब होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है. इट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन. अपने स्किन को ना आप ऐसे नोच लो, जलन होगा ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन. तो आपके बॉडी में पूरा टॉक्सिन्स हो रहे हैं, जलन हो रहा, इन्फ्लेमेशन हो रहा. इन्फ्लेमेशन से पेन होता है, हड्डी इधर उधर बढ़ने से, कम होने से पेन नहीं होता है. एक बात आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए. आप लोग समझदार लोग हैं. प्रॉब्लम यह है कि फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हो. तो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा तब दर्द होगा. इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा. वॉट एवर द गैप इज देयर बिटवीन इन द जॉइंट में गैप से दर्द नहीं होता. दर्द किससे होता है? इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है. तो लिवर को आपने इन्फ्लेमेट कर दिया है ना. स्किन पे को इन्फ्लेमेशन हुआ, उसको कम कैसे करेंगे? थोड़ा सा घी लगाएंगे तो कम हो जाएगा ना इन्फ्लेमेशन. थोड़ा घी लगाएंगे तो कम हो जाएगा ना. मगर आपका लिवर कैसे घी लगाएगा? वो फैट बढ़ा लेता है थोड़ा. वो भी घी लगाता है, क्या करता है? फैट बढ़ा लेता है. तो क्या कहते हैं इसको हम? फैटी लिवर. अब ये गलत कह दिया हमने, कहता फैटी लिवर तो गलत हो गया. वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज बचाने का एक हार्मोन है आपके बॉडी में, प्रोटेक्टिव हार्मोन. व्हाट इज दैट? कॉर्टिसोल. इसका नाम क्या है? कॉर्टिसोल. कुछ भी नाम रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो बनता किससे है? और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड. जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आप वो भी नहीं बढ़ने देंगे. कोरोना हुआ था ना, सबको कोरोना हुआ था. फीवर बढ़ता है शरीर में ना, फीवर आता है जब भी आता है वायरल इन्फेक्शन. जब भी फीवर आए तो फीवर से वायरस को मारने की कोशिश करता है आपका बॉडी. आप फीवर नहीं होने देते. आप डोलो खा लोगे, एक पैरासिटामोल खा लोगे, क्रोसिन खा लोगे, है कि नहीं है? तो इसको वायरस को मारने नहीं दोगे आप. ये अपने आप को बचाना चाहेगा, बचाने नहीं दोगे. उल्टी करना चाहता है, उल्टी बंद कर देते हैं हम. दस्त आती है, दस्त बंद कर देते हैं हम. मुझे बताइए, इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं? इज टॉर्चरिंग योर बॉडी कैन बी कॉल्ड एज ट्रीटमेंट. सो व्हेन इट कैन बी कॉल्ड एज अ टॉर्चर. तो बचपन से अगर आप टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोलेंगे तो यही हाल होना है ना. अल्टीमेटली योर बॉडी विल गिव अप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. यस और नो? जब आप टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोलेंगे तो शरीर खराब होगा ही होगा. और कल को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, कैंसर हो गया, कौन बचाएगा आपको? ये बता दीजिए. क्योंकि आपको मालूम है ना, कैंसर बढ़ जाता है अगर आप कीमोथेरेपी करवाएंगे तो. उसका रिलैप्स जल्दी होता है और जोर से आएगा और खत्म कर देगा. जो भी एज होगी ना आपकी, वो भी खत्म कर देगा. वी आर गोइंग अगेंस्ट द वेज एंड मीन्स ऑफ दिस बॉडी. हम शरीर के खिलाफ में हो गए. हमने शरीर को क्रिमिनल बना दिया. दिस कैनॉट बी कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट. इट इज अ ब्लंडर. तो पहली बात, आपका शरीर फ्लो में काम करता है ना. कुछ भी आप डालते हैं तो फ्लो होता है ना आपके बॉडी में. व्हाट इज न्यूरोमस्कुलो डिसऑर्डर? जब व्हेन यू से न्यूरोमस्कुलो डिसऑर्डर, है ना, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल, ये स्ट्रक्चर है आपका. यहां पे कोई चीज फ्लो होती है, नस में इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, सेंसेशन फ्लो होती है.
आपका अगर डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो आपके मसल्स बनेंगे, बॉडी में हर चीज बनती है। तो रीजेनरेटिव फैक्टर आपका या रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ कमजोर है, इसीलिए गैप आ रहा है ना, घुटनों में गैप आ रहा है, रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा कौन सा स्ट्रेंथ? फ्लो वीक हो गया, डिटॉक्स, टॉक्सिन तो अपने शरीर में डाले ही जा रहे हैं, मगर बॉडी डिटॉक्स करेगा कितना कर पाएगा वो? तो वो वाला फैक्टर भी वीक हो गया। जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, डू यू थिंक योर बॉडी विल रीजेनरेट प्रॉपरली? अब बेचारा लिवर जो है उसको कमजोर कर दिया बॉम्बार्ड करके, अब वो बेचारा इंसुलिन नहीं ले पा रहा, वो इंसुलिन से एलर्जी हो गई है, तो इसको कहते हैं डायबिटीज। वो इंसुलिन से एलर्जी हो गई तो विमेन में, औरतों में क्या हो रहा? पीसीओडी। देखो कितना इनफर्टिलिटी का इश्यू हो, क्योंकि आपने लिवर को इतना प्रताड़ित किया कि अब वो काम ही नहीं कर पा रहा। वहीं पे T4 T3 में कन्वर्ट होता है, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन थायरोक्सिन में कन्वर्ट होता है, नहीं हो पाएगा तो थायराइड बोल देंगे उसको। सो विदाउट इंप्रूविंग द ऑर्गन स्ट्रेंथ एंड द फ्लो, द वे थिंग्स फ्लो इन योर बॉडी, देयर कैन नॉट बी अ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कोई हो ही नहीं सकता। दिस इज समथिंग दैट यू ऑल पीपल अंडरस्टैंड। आप लोग समझते ही हैं, लेकिन इधर देख ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या क्या देख रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सो प्लीज, योर बॉडी इज हेल्पलेस एट दिस पॉइंट। आपका शरीर हेल्पलेस हो गया और वो गिव अप कर देगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ इम्बैलेंस ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन। वो बेचारा रिस्क में आ गया तो बढ़ाएगा रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म को, आप उसको भी नहीं बढ़ने देंगे, then it will create, then the disorder will get created, that is called as autoimmune disorder. Immunity is always to protect you. तो क्या करना है? क्या करना है? आप कोई भी स्ट्रेंथ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी बॉडी में, कोई भी स्ट्रेंथ क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे करते हैं? I've given examples. कोई भी विद इन योर बॉडी, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी स्ट्रेंथ, लिवर स्ट्रेंथ, किडनी स्ट्रेंथ, एनी डैम स्ट्रेंथ, अब एक काम करो, मेरे सामने एक्सपेरिमेंट करो, ऐसे खींच के रखो जरा, ऐसे खींचो, क्लास्प योर फिंगर्स एंड पुल एंड कीप इट पुल्ड, रखो ऐसे, सी बिहाइंड, पीछे देखिए, आपने सांस रोका हुआ, खींच के रखिए, खींच के रखिए, देखिए पीछे सांस रोका है। बिना सांस रोके तो आप कोई एफर्ट ही नहीं डाल सकते। ऐसे ही इफ यू डू नॉट पुश इट आउटसाइड, अगर आप ऐसा थ्रस्ट कुछ करो, उसको बाहर की ओर धक्का मत दो, अभी हम तो बाहर की ओर दे रहे हैं ना, बाहर की ओर ना दें, अंदर की ओर दें, तो ये लिवर पे चला जाएगा इंपैक्ट, ये किडनी पे चला जाएगा, तो लिवर ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इनहलेशन 1 यूनिट, होल्ड 1 यूनिट, एक्सहेलेशन 4 यूनिट, इससे आपके लिवर पे असर आता है। इनहलेशन 4 यूनिट, होल्ड 2 यूनिट, एक्सहेलेशन 1 यूनिट, इससे आपके किडनी पे असर आता है, आपका किडनी स्ट्रांग हो जाएगा। बाहर से आपके लिए अगर एक्सरसाइज करके कुछ करना चाहेंगे तो योर ऑर्गन्स आर नॉट स्ट्रांग, यू विल गेट इनटू हार्ट अटैक। जवान लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है आजकल, स्पोर्ट्स के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, ट्रेडमिल पे हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? अगर आप बॉडी को ज्यादा पुश कर दोगे, आपका हार्ट कमजोर है, वो संभाल नहीं पाएगा, तो एक्सरसाइज भी आपको नुकसान कर देगा, क्योंकि ऑर्गन ठीक नहीं है, ऑर्गन स्ट्रांग नहीं है। तो ऑर्गन स्ट्रेंथ करने के लिए आपको कुंभक का इस्तेमाल करना, कुंभक आप इस्तेमाल कर दीजिए, देन यू टेक एनी काइंड ऑफ लिवरेज विद योर बॉडी, यू विल नॉट गेट इनटू क्रैश, दैट इज गारंटीड। कुछ समय तक अपने ऑर्गन को स्ट्रांग कर दीजिए, उसके बाद अपने शरीर से कुछ भी काम लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर वो नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी। तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फूड आप कितना बदल लोगे बताइए, एनवायरमेंट को कितना बदल लेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, आप फंसेंगे ही वहां पे। आपकी रेजिलियंस पावर को बढ़ाना पड़ेगा, सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, कि वो खराब चीज के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वक्त में बचाएगा कौन आपको? आपकी ऑर्गन स्ट्रेंथ ही बचा, आपका बॉडी ही बचा सकता और कोई नहीं बचाएगा। तो इंप्रूव योर ऑर्गन स्ट्रेंथ एंड फंक्शन, दिस इज कंपल्सरी। वंस यू डू दैट प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट कमिंग डाउन 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 डाउन। एक ऐसा भी टाइम आ जाएगा जब आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट इट माइट टेक सम टाइम। People start getting benefit from the very first week or very first day itself.
Once you complete the program, start practicing. The very first day you'll feel different. But to establish that strength, it will need some time. So that some people will get benefited in 1 month, some people in 3 months, some people in 6 months. So I'll give you a deal. 3 साल में आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. Is it a bad deal? You don't have an option. इस वक्त में ऑप्शन ही नहीं है कोई और. जितनी दवाई खाओगे उतनी प्रॉब्लम में आएगा. So let's put it right. अभी हमने सब कुछ उल्टा कह दिया. जिसके ऊपर सबसे उधार होता है ना, उसको हम अमीर बोलते हैं. तो ऐसा नहीं करें. Let's talk some sense. Medicine has created these diseases. Your body can come out of any disease. That is how your body is designed for. लाखों सालों से इस शरीर को कोई बीमारी नहीं होती. ये पिछले 100 साल में ही हो रही है. So let's put it right. इसको सीधा करना पड़ेगा. If you want to take some support, at least take support of something which will not give you adverse drug reaction. जो प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक चिकित्सा, या फिर आयुर्वेद में भी जा सकते हैं आप, बट उसमें भी काम करने की जरूरत है. काम तो करने ही नहीं दिया ना आयुर्वेद पे. मोनोपोली रखी है, बाकी सबको गालियां देते हैं. सो उसको भी हमें ऊपर उठा के रखना पड़ेगा. सपोर्ट लेना है तो उसका भी लिया जाता है. देयर आर वेरी वेरी इफेक्टिव वेज एंड मीन्स. केवल उसको बढ़ाने की जरूरत है, बट अपने शरीर को बचाने की जरूरत सबसे पहले है. आप ही बचा पाएंगे अपने आप को, और कोई नहीं बचा सकता. Neelam ma'am talks about how do we find out which dosha we have, Vata, Pitta or Kapha. हर चीज को खुद से पता करने में मुश्किल होती है थोड़ा. आपको बहुत काम करना पड़ेगा उसके ऊपर. किसी ने 10 साल तक समझने की कोशिश की, तब समझ में आया वात, पित्त, कफ और उसके दोष, और आप YouTube देख के समझना चाहते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है. इसीलिए जरूरी है कि आप किसी का सपोर्ट ले लें, थोड़ी सहायता ले लीजिए. लेकिन एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, बट क्या वो आसान तरीका ही है? रियल तरीका नहीं है. वो बहुत बड़ी चीज, मतलब बहुत गहराई से आप नहीं समझ पाए. फॉर एग्जाम्पल, if I tell you your nervous system is kapha, your muscles is pitta, your bones is vata. आपकी हड्डियां क्या है? वात. आपके मसल्स क्या है? पित्त. और आपके नर्व्स क्या है? कफ. अब मैं थोड़ा और डिटेल में डिफाइन करूंगा. तो नर्व के अंदर जो सेंसेशंस हैं वो वात है ना. और नीचे आ जाए, और अंदर आ जाइए, तो हर जगह आपको ये वात, पित्त. नर्वस सिस्टम के अंदर जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो उसकी एक्टिविटी एनर्जी है, वो पित्त है, और जो मटेरियल है वो वात है. इतना करते जाएंगे तो आप हर चीज में डाल सकते हैं. ये पूरा आपका पूरा सिस्टम ही वात पित्त कब से बना. लेकिन सिंपल तरीके से बताओ, इसीलिए ये बहुत डिटेल है ना. सिंपल, वैसे लोग सिंपल बात करते हैं. पतला आदमी वात, थोड़ा मोटा उसका पित्त, तो और ज्यादा मोटा कफ. ऐसा नहीं है. इससे नहीं समझ में आएगा आपको. एक और तरीका बता देता हूं. ऊपर हिस्सा, चेस्ट से ऊपर कफ, चेस्ट से कमर तक पित्त, कमर से नीचे वात. क्या ये सभी के लिए सही है? नहीं, सभी के लिए सही नहीं. तो अब तीसरा तरीका मैं आपको बताता जा रहा हूं. आपको जहां समझ में आए पकड़ लीजिए, क्योंकि इट इज नॉट सिंपल. एक तरीका बताऊंगा नहीं आपको समझ में. और इसकी कॉम्बिनेशंस भी होते हैं. वात पित्त भी होगा, वात कफ भी होगा, है ना. कफ पित्त भी होगा, वात पित्त कफ भी होगा. अब तीसरा तरीका बता रहा हूं आपको. अगर आपके शरीर के अंदर जलन हो रही है तो आपके अंदर पित्त प्रकोप है. अगर आपके शरीर के अंदर ठंडक लग रही है, ड्राइनेस फील हो रहा है, तो वात प्रकोप. अगर आपके शरीर के अंदर हेवीनेस हो रहा है, लेजीनेस आ रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो कफ प्रकोप. अभी भी कुछ लोग समझ, लेकिन आप बताइए, सबको ही आलस आ रहा है कि नहीं? सबके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है कि नहीं? अच्छा, और डीप जाता हूं. तीसरा तरीके का चौथा तरीका बताता हूं. फोर्थ तरीका, अगर आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है और आप भूख सहन नहीं कर सकते, एसिडिटी बन जाती है अगर भूख लगे तो, आप खाएं नहीं तो,
तो आप पित्त प्रकृति के। अगर आप भूख कम लगती है तो आप कफ प्रकृति के, मतलब कफ प्रकोप है। और अगर भूख भी लग रही है, खा भी रहे हैं, फिर भी शरीर में नहीं लग रहा, तब वात प्रकोप है। केवल 3 में इतने सारे तरीके बताए, अभी मैं और भी तरीके बता सकता हूं। मैं इसको सैकड़ों तरीके से डिफाइन कर सकता हूं आपके लिए। अभी 3 ही बोला, अब मैंने बताया एक्चुअली कितने हैं, 7 हैं। और डिटेल में जाना है तो वो 7 में भी और निकाल सकते हैं, पर इतना ज्ञान लेके कहां जाएंगे आप, ये बता दीजिए। सारा का सारा गूगल सिर में डाल लेंगे ना तो भी आराम नहीं मिलेगा। सारी की सारी पढ़ाई करने के बाद में एक स्माइल, खुशी लाने के लिए थोड़ा सा डांस करना पड़ता है, ये सो नो। थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे तो खुशी मिल जाती है, और 50 साल पढ़ाई करेंगे तब भी वो खुशी नहीं आ पाती। सो हाउ मच यू कैन नो अबाउट दिस बॉडी, हाउ मच यू कैन नो अबाउट दिस बॉडी? Not more than 1%. With all the information, how much allopathy knows about this body? Not even 1%. They don't know why diabetes happens. They don't know why blood pressure happens and what is blood pressure. They don't know why thyroid happens. They don't know why cancer happens. They don't know why arthritis happens. They don't know why rheumatoid happens. They don't know why Parkinson happens. मुझे बता दीजिए. If you don't know something and you're giving treatment, are you doing a good thing or a bad thing? लेकिन कमाल की बात यह है कि शरीर को इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको जानने की जरूरत नहीं है। तो कैन यू ऑल स्माइल एट दिस मोमेंट? क्या स्माइल कर सकते हैं? कर सकते हैं स्माइल? कर सकते हैं? आपको मालूम है एक स्माइल करने में कितने केमिकल रिएक्शन होते हैं आपकी बॉडी में? लाखों होते हैं, लाखों। अगर आप ये कंडीशन लगा दो, विदाउट नोइंग ऑल द केमिकल रिएक्शन आई विल नॉट स्माइल, तो you lose your life, isn't it? There are simpler ways of treating you, and there are heinous and a very wrong way of treating you or treating yourself. You must decide what, है ना? तो ये आप जान भी जाएंगे तो पर भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, 100% कोई गारंटी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। आप अपने आप को ट्रीट कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। मगर अगर आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथ दे देते हैं, अपने ऑर्गन को स्ट्रेंथ दे देते हैं, अपनी फंक्शनिंग को स्ट्रेंथ दे देते हैं, तो टेक इट एज अ गारंटी दैट एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। सारी चीजें एक लाइन में आ ही जाएंगी, तो ये ज्यादा बेटर है, isn't it? Next Okay. question. Next question from the device 1+9 5G. Severe hand pain due to nerve compression on C5, C6. Can this be fixed? Okay. So ये एग्जाम्पल हर वेबिनार में मैं देता हूं। So ऐसे गोल गोल पत्थर होते हैं ना, चपटे पत्थर, ऐसे 33 पत्थर ले लो, उसके बीच में छेद करके एक रस्सी डाल दो। तो रस्सी को अगर आप खींचेंगे तो पत्थर सारे अलाइंड हो जाएंगे, ऑल द स्टोन्स विल बी अलाइंड। द मोमेंट यू लूसन द टेंशन ऑफ द रोप, रस्सी के टेंशन को जैसे ही ढीला छोड़ेंगे सारे पत्थर खिसकेंगे ना, स्लिप डिस्क होने लग जाएगा। तो स्लिप डिस्क का ऑपरेशन करा लो तो दूसरी जगह हो जाएगा, तीसरी जगह हो जाएगा, चौथी जगह हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे उसका। ये जो टेंशन है इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। ये रस्सी खींचने के टेंशन को हम कहते हैं व्यान। इसको क्या कहा जाता है? व्यान, विच मेंटेन्स योर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। व्हाट इज द फोर्स विच मेंटेन्स योर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी? इट इज कॉल्ड एज व्यान फोर्स। तो व्यान फोर्स को अगर आप मजबूत कर लेंगे तो ये इंटीग्रिटी बन जाएगी, आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम की इंटीग्रिटी अच्छी हो जाए। ये ट्रीटमेंट है, दिस इज रियल ट्रीटमेंट। सो व्हाट डू वी डू? वी टीच यू 3 थिंग्स। आपको 3 चीज सिखाते हैं, अंगन्यास, हठ विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 चीज सिखाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन इज व्यान क्रिया कुंभक। तो ये आपके मॉड्यूल में है ही।
we are increasing the structural integrity or the force which maintains structural integrity of the body. वो आप बढ़ाते जाइए, आपके स्लिप डिस्क के एपिसोड खत्म हो जाएंगे, है ना. If there is some need of an operation, very emergency kind of, you can go for operation, that's not a problem, but at least you should be treating yourself. उसके बाद भी आपको तो रिहैबिलिटेट करना या इस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाना, ये तो जरूरी है ना. सो दैट इज वीकनिंग, बिकॉज ऑफ दैट दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग. ये आप L4, L5, L6 कुछ भी करते रहो, इट डजंट मैटर. यू नीड टू इंक्रीज द स्पाइन स्ट्रेंथ, है ना. दूसरी चीज, सेकेंड पार्ट, वन पार्ट, एक पार्ट मैंने बता दिया. दूसरा पार्ट अलाइनमेंट. आपकी बॉडी को ना अलाइनमेंट चाहिए होता है. द वे यू यूज योर बॉडी, इफ यू टेक योर व्हीकल इन अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन, अगर मुश्किल जगह पे अपनी गाड़ी को ले जाइए, ऊपर खाबड़ बहुत, फिर आके अलाइनमेंट कराते हो ना, नहीं तो स्टीयरिंग एक तरफ में जाएगा, एक जगह एक तरफ में गाड़ी भागेगी. मगर बॉडी को तो आप बहुत खराब तरीके से इस्तेमाल, दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसका अलाइनमेंट कर ही नहीं रहे. व्हाई यू नॉट डूइंग अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी? आप अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट करा लेते हो, अपनी बॉडी का अलाइनमेंट नहीं कराते. Why? There are 3 kinds of alignment that your body needs. 3 तरीके के अलाइनमेंट चाहिए आपके बॉडी को. नाभि, कौड़ी, नले. अलाइनमेंट ऑफ योर नेवल, उससे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक होगा, उससे आपके बॉडी में रीजनरेशन बढ़ेगा, उससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा. नाभि, कौड़ी, मिडिल ऑफ चेस्ट, इससे आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ ठीक होगा, इससे आपका हार्ट का स्ट्रेंथ ठीक होगा, इससे आपका लिवर का फंक्शन ठीक होगा, पैनक्रियास का फंक्शन ठीक होगा. थर्ड थिंग, तीसरी चीज है आपके लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी, उसे नले कहते हैं. थ्रू योर थाइज इट गेट्स अलाइन. जांघों से आपकी बॉडी का लेफ्ट एंड राइट का अलाइनमेंट जुड़ा हुआ, इसे कहते हैं नले. तो ये 3 अलाइनमेंट आपके कोर्स के अंदर हम सिखाते ही हैं आपको. It is built in such a manner that you will be aligning every day. You will be aligning your body. If you align your body, imbalances in the body will come down, and you will see these slip disc problem, hip का problem, shoulders का problem. इसमें एक मेजर रीजन है अलाइनमेंट. आप अगर अलाइनमेंट करा लें तो आपका स्लिप डिस्क भी ठीक जगह पे आ जाएगा. कई लोगों को ऑपरेशन कराने की भी जरूरत. We also teach you some methods through which you can bring down the slip disc issue specific to. तो ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, अलाइनमेंट, एंड द थर्ड एंड द फाइनल चीज, इसमें मैं सभी कुछ इंक्लूड हो जाएगा. यू नीड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम ऑफ योर बॉडी. 3 चीज बताया, स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम. रिदम को हम भाव भी कहते हैं, लय भी कहते हैं, बैलेंस को हम स्थिति भी कहते हैं, राग भी कहते हैं, और स्ट्रेंथ को हम भाव भी कहते हैं. भाव. सो भाव, राग, ताल, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ, भारत. आपके देश के नाम में ही हेल्थ की कुंजी छुपी हुई. भारत. भारत का मतलब ये था हाउ टू क्रिएट हेल्थ. सो हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? बैलेंस कैसे करते हैं? एक टांग पे खड़े होकर देखिए, या किसी को बोलिए आपको धक्का देना. somebody pushes you, how do you balance yourself? You hold your breath. ठीक है, अभी बताया स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हो. पुश करके देखो, रोक के देखो. You hold your breath. How do you move your body? You hold your breath in variable proportion behind. डांस कैसे करोगे? चलोगे कैसे? दौड़ोगे कैसे? Variable amount of breath hold happens behind. तो कुंभक कुंजी है भाव, राग, ताल, स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम को क्रिएट करने का. इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी मैं आपको बोल दूं. So your body can only protect you. Your body's mechanism can protect you. Body's recovery strength can protect you. अपनी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपनी रेजिलियंस को बढ़ाइए, और फिर आप देखेंगे कि लाइफ आपको मैजिकल लगेगी, खूबसूरत लगेगी. आज तो परेशानी है ना, उठ के भी बैठने में परेशानी है. हाँ, Sonal man talks about finger joint है,
डायबिटिक्स है, ये थेरेपी से कब तक क्योर होगा? इसमें खाने पीने में परहेज रखना पड़ेगा? पहली बात तो ये थेरेपी को हटा दीजिए, इसका क्योर नहीं है, ठीक है ना, इसका क्योर नहीं है, ये थेरेपी हटा दो पहले। अब बताइए आपको एक क्योर मिल रहा है किसी से, ठीक है, अब एक बताइए कि एक तरफ में आपको क्योर मिल जाएगा इससे, तो क्या आप इसे करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, ये बता दें। और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो कब तक मिलेगा, जैसे मैंने पहले बता दिया कि डिपेंड करता है आपकी कमिटमेंट के ऊपर, क्योंकि हम आपको कुछ सिखाएंगे, आपको वो करना पड़ेगा, आपकी कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीजें आप जो नहीं कर पाएंगे हम आपको बताते हैं कि जरूरी नहीं ये चीजें करना। तो स्टार्ट विथ समथिंग, क्रिएट अ लिटिल स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। 5 कदम चलिए, आप 1 किलोमीटर नहीं चल सकते तो 2 कदम चलिए, हम उस तरीके से आपको सिखाएंगे। द मोर यू गेन स्ट्रेंथ, स्लोली you'll see you'll be able to do practice, but you should be committed towards it। आपको थोड़ा अपने लिए कमिटमेंट चाहिए ना। क्या भोजन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, कुछ चेंज करना, ऐसा हम बोलते नहीं है ना, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी कि आप ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। कैसे करना है हम आपको केवल वो बताते हैं। पहली चीज है कुंभक का मतलब, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो चीज करना नहीं करना, ये तो बचपन में नहीं था ना, आप कुछ भी करते थे, आपका शरीर संभाल लेता था। तो आज भी हम आपको इस तरीके का बनाना चाहते हैं कि वॉट एवर यू डू विथ योर बॉडी इज एबल टू रेजिस्ट इट और एब्जॉर्ब इट। आप कुछ भी खाएं, उसको पचा पाए। हम तो चाहते हैं आप पत्थर पचाओ ना। तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, बट यस, इनिशियली मे बी इफ यू डू सम गुड थिंग्स अबाउट योर फूड, इट हेल्प्स यू, सपोर्ट करता है। हर चीज सपोर्टिव है, भोजन सपोर्टिव है, मेडिसिन सपोर्टिव है, कुंभक क्यूरेटिव है, आपको ठीक कर देगा। तो बाकी सब सपोर्ट आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, जितने आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से कर सकते हैं, आपकी सुविधा से भी कर सकते हैं, मगर ट्रीटमेंट तो आपको करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नहीं। Prem sir talks about how to take care of osteoporosis and degeneration of hip joints. Kindly suggest. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? आपने ऑस्टियोपोरोसिस नाम सुना? देखो, पहली बात तो आप जहां पे पढ़ते हैं ना, वो नामकरण संस्कार करते हैं, ठीक कुछ भी नहीं करते। नामकरण आप कर दो, कोई संस्कृत नाम डाल दो उस बीमारी को, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर भी रहा है, मगर उसको हम यूज नहीं करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऑब्जर्वेशन है कि हड्डियां जो है ब्रिटल हो गई, मगर क्यों है ये तो पूछो। फिर आप कहोगे, अगर इस तरीके से देखेंगे तो आप कहेंगे अरे कैल्शियम की कमी हो गई। तो कैल्शियम खा के कितने लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया? दुनिया में एक एग्जांपल बता दो, किसी का भी नहीं हुआ। मगर कैल्शियम लंबे समय तक खाओगे तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, 200% चांस बढ़ जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का, और आप वही ट्रीटमेंट लेते हैं। तो पहली बात तो ये मालूम ही नहीं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है। एक्चुअली आपका बॉडी का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही चीजें, आपके बॉडी में चीजें एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही और उससे बाहर भी निकलने में मुश्किल होती है। कितने लोगों को ही कॉन्स्टिपेशन है, कितने ही लोगों को यूरिक एसिड का इश्यू है, कितने ही लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कितने ही लोगों को एलर्जीज हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर्स, कितने ही लोगों को हो रहा। तो कहने का मतलब ये, एक और दूसरे तरीके से समझाता हूं, जब ये सब चीजें होगी, अगर आपका लिवर ठीक नहीं होगा तो आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां पे है? कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा आपका बॉडी, एब्जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ वीक हो गई। तो आपको अगर एब्जॉर्ब करना है तो क्या करना हो चाहिए? आप जरा सोचिए कि अगर आपको एक जूस के ग्लास से जूस को खींचना है तो कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके अंदर? इनहेलेशन, खींचने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पुल करने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए हवा को, इनहेलेशन की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मुझे बताइए, अगर आप धुएं वाली गाड़ी के पास में जाएं तो आप इनहेल ज्यादा करते हैं, कम करते हैं? यू इनहेल लेस ऑटोमेटिकली, इजंट इट? कहीं धुआं निकल रहा है गाड़ी से बहुत ज्यादा, तो आपकी सांस कम आएगी, ज्यादा आएगी? कम आएगी ना। तो आपने तो धुआं पूरे एनवायरमेंट में फैला दिया। पूरे एनवायरमेंट को अगर आपने पोल्यूट कर दिया तो आपकी बॉडी नेचुरली सांस कम ले रही है, ज्यादा ले रही है? 50 साल पहले जो आप सांस ले रहे थे, आज उसका मेरे ख्याल से 40 से 50% ले रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन की कमी आएगी। इसीलिए आजकल आप देखते हो आपके
आपके पूर्वजों को इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता जितना आप खा रहे हैं आज। जितनी वैरायटी आप खाते हैं ना, सालों साल एक ही चीज, एक हर चीज मिल जाती है आपको। आपके पूर्वजों को इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता था, और डेफिशिएंसी आज के टाइम पे ज्यादा, उनको डेफिशिएंसी होती नहीं थी। तो आप अपनी बुद्धि तो लगाएं जरा, अपनी बुद्धि लगाएं। प्रॉब्लम कहां पे है? यू आर नॉट इनहेलिंग प्रॉपरली। द इनहेलेशन स्ट्रेंथ, इनहेलेशन कुंभक, स्ट्रेंथ को कुंभक बेसिकली स्ट्रेंथ है। तो इनहेलेशन का कुंभक वीक हो गया, आप इनहेल ही नहीं कर पा रहे, आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। जो भी कुंभक करते हैं उनकी डेफिशिएंसीज खत्म हो जाती है। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आपको तो उसका इनहेलेशन का कुंभक करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है। एब्जॉर्प्शन फूड खाने से नहीं बढ़ता, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और ये ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाएगा। कितने टाइम में ठीक होगा? डिपेंड्स अपॉन कितना काम कर सकते हैं आप आराम से अपने बॉडी के ऊपर, और क्या सिचुएशन है। सिचुएशन बहुत खराब है, थोड़ा टाइम लग सकता है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं है, जल्दी हो जाएगा। Okay, Musharraf sir is asking about suffering from severe knee pain. Has become from last 7 to 8 years has become bad. From last 1 year, doctor advised knee replacement. अच्छा, एक और चीज मैं आपको नी पेन के बारे में स्पेसिफिक बताता हूं। अभी हालांकि वी हैव टॉक्ड अबाउट लोअर बैक पेन एंड नी पेन बिफोर, इसके पहले मैंने बताया, आई टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग इन अ कंप्लीट अम्ब्रेला, एक पूरा अम्ब्रेला बता दिया ये क्यों हो रहा है। बट स्पेसिफिक आ जाते हैं, थोड़ा नी पेन के ऊपर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नाग वायु। आपके शरीर में ना कोई भी चीज यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। आपका ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, आपका फूड एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, आपके हार्मोन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यूनि डायरेक्शनल फ्लो के कारण आपका बॉडी बन पाया। इस यूनि डायरेक्शनल फ्लो को हम कहते हैं नाग फैक्टर। इसको क्या कहते हैं? नाग फैक्टर। जैसा मैंने पहले एक पॉइंट बताया था, द फ्लो ऑफ दिस बॉडी हैज बिकम वीक एंड हैज बिकम ऑब्स्ट्रक्टिव। तो आपको ये तो कम से कम मालूम होगा ना, हार्ट ब्लॉकेजेस बहुत हो रहे हैं, हाँ, आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स के एपिसोड्स बढ़ रहे हैं, किडनी स्टोन्स के एपिसोड बढ़ रहे हैं, हाँ, ये तो होगा, आपने सुना होगा, ठीक है ना। सिस्ट तो बड़ा कॉमन हो गया है ना। सिस्ट फीमेल्स में, ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, इस तरीके की बड़ी कॉमन चीजें हो गई हैं। तो ब्लॉक्स यानी आपके शरीर में फ्लो जो है वो ठीक नहीं हो रहा। आजकल लोग आप देखेंगे ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ब्रेन में होता है तो लकवा मार जाता है ना। लेकिन पेरिफेरल पैरालिसिस भी होता है, पेरिफेरल बॉडी में भी ब्लॉकेजेस होते हैं। आपको देखने को मिलेगा वेरिकोज वेन हो रहा है, वो भी ब्लॉक के कारण ही है, रुक रहा है, ब्लड रुक रहा है एक जगह पे, पानी रुक रहा है, फैट रुक रहा है, फ्लो ही नहीं रहा, लोग मोटे हुए जा रहे हैं क्योंकि उनका फैट ही फ्लो नहीं हो रहा। तो फ्लो कमजोर हो गया, इतना तो हमको समझ में आता है ना, फ्लो कमजोर हो गया। तो फ्लो को तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। और दूसरा इसके साथ में किसको कोरिलेट करेंगे? व्हाट इज वॉकिंग? व्हाट इज वॉकिंग? इट इज अ फ्लो। आपके बॉडी का फ्लो ठीक होगा तो आप चल पाएंगे, वरना चल भी नहीं पाएंगे। सो व्हेन your flow or your walk is getting restricted, it is a signal that there are restrictive things in your body. आपके शरीर में बहुत कुछ restriction हो रहा है। तो अगर उसको ओपन अप कर देते हैं, आप उसको खोल देते हैं, तो आपको चलने में आसानी हो जाएगी। So we are also coming up with, once you join this program, तो उसमें कुछ इंडिविजुअल चीजें को हम अलग से भी एड्रेस करेंगे, like specifically knee pain, knee problem. So once you overall strengthen your system, then we will specifically, जैसे knee pain है उसको भी एड्रेस करेंगे आगे चल के, क्योंकि उसमें then we will have to work upon a certain methodology of creating flow in your body, which is a complex thing, वो बहुत ही complex है। तो पहले
एक कंप्लीट प्रोग्राम से शुरू करते हैं, and then we can get into specifics. Okay, we'll take up the questions. So please raise your hands. Whoever wants to ask a question. Anybody among the participants who would like to ask a question, please raise your hand. Or you can unmute yourself and ask, please. Yes, Falguni ma'am, you can ask your question. Please unmute. तबीयत खराब हो गया खासा सूट कर लिया पहले तो कुछ हो गया आपका वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. Just hold on. Can you hear me, sir? Hello? Yes. Hello? Yeah. Can you hear Yes, me, yeah. sir? Yes, we can hear you. Your name, please. Yeah, I'm Falguni. Okay. I have a question that you're stressing on Kumbhak a lot, but as I'm doing my Om chanting and then I even do Naji Shuddhi, but then it feels that I'm too stressed from my head and my shoulder and all that. So would it be advisable for me to do this? See why it is happening. First, you need to get into the reason of why it is happening above, in the upper part of your body. As I said, if something problematic happens in the upper part of the body, you have a kapha dosha. What is kapha dosha? In your body, the kapha or the digestive aspect, the metabolic aspect is weak. So your body is not converting things into something else. Transformation jo hota hai na, the transforming a food into your tissues is called as metabolism. So your body transforms something into 7 different kinds of tissues. Rasa, Rakta, Mans, Med, Asti, Madhya, Shukra. These are 7 different kinds of tissues that your body need to transform whatever you eat into. Whatever you eat can be called as kapha or ojas. So when kapha is not dissolving properly, that means metabolism is not happening properly, then this upper part of the body will get congested or will get hampered, the flow will get hampered, and you'll get into some kind of a feeling of stress in the upper part of the body. Now, how to melt it down? Your body needs heat. So what is the solution? Your body needs heat. Your body heat is less, or your Jataragni is weak. A common umbrella for that is your Garhya Patya Agni is weak. Another way to look at it is, we also call it your Apana Kumbhak is weak. So your holding factor is weak. So if your holding factor, you're holding, or you can do this experiment also. You hold breath and keep holding it till you are comfortable and repeat the cycle many times. What you will see, your body will get heated up. Some people will start sweating. So hold creates heat. This can be experimentally, you can test it out. So what do you need? You need Jataragni, you need the Garhyapatya Agni, you need the metabolic heat in the body. If metabolic heat happens in your body, you'll see this stress factor, it will just melt down. This stress will come down. Not only this, you'll see your joints will become more flexible. People with kapha prakriti or kapha vikara, their joints become stiff. Yes. Sometimes the stiffness creates this problem. So if your cervical region, your shoulder region, even with the meninges, the sutures through which your cranial bone is connected, if they become very stiff, they'll create a stiffness in the muscles in the upper part or the meninges. That stiffness you feel as a pulling kind of a feeling. So the moment your upper body gets a little heated up, you'll see it becomes loose. Cervical stiffness, the moment your body gets heated up, you'll feel sudden looseness in that area, sudden looseness in the joints, even shoulders, if your shoulders are stiff. So what do you need? You need heat. You need heat. How will you create heat? Internally, not externally. Externally is a temporary phenomena. How will you create or enhance the Jataragni in the body or the Garhyapatya Agni in the body? For that, you'll have to do Kumbhak. Right? So Kumbhak is a solution for your situation. Okay, anybody else among the participants who would like to ask their questions? Yeah, Rekha Mistry, ma'am, you can ask your I question. would.
I would, this is Musharraf this side. Can I ask a question, please? Yeah, please go ahead. Yeah, good evening, sir. I'm Musharraf from Delhi. I'm a lady. Whether my name, people think I'm a male. No, I'm a lady and I'm a teacher. और मुझे बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं. ये मेरे नीज वाला तो है, मुझे इंसोमिया भी है, मुझे नींद नहीं आती है बिकॉज 2 साल पहले आई लॉस्ट माय सन. उसके अलावा मुझे जॉइंट्स में पेन, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये सारे हैं. तो इफ आई ज्वाइन दिस प्रोग्राम, क्या मेरी ये सारे कवर होंगे या मुझे अलग अलग प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा? पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है और लोग क्या लेते हैं, उससे इस पे ना जाए. आप टीचर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दूसरी बात, आपको पहले समझना चाहिए कि नींद क्यों नहीं आ रही. जी. नींद आने के लिए ना, अब एक सिंपल एनालॉजी मैं आपको दे रहा हूं कि आप गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं और खड़े हैं और किसी रॉड को आपने पकड़ के, खंबे को आपने पकड़ के रखा है गाड़ी के अंदर. जी. जब गाड़ी उबड़ खाबड़ जगह में जाती है तो आपकी पकड़ टाइट होती है या ढीली हो जाती है? टाइट हो जाती है. तो इसका मतलब जब भी रिस्क आता है ना, तो आपका शरीर अपने आप को बहुत टाइट पकड़ता है. जी. ये आप कहीं और भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए. किसी ने आपको अगर डराने की कोशिश की तो आप अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं और सांस को रोक लेते हैं. जी. अगर कोई हॉरर मूवी देखेंगे, कोई खराब सीन आएगा तो आप देखेंगे कि आप अपने शरीर को टाइट पकड़ लेते हैं और सांस को रोक लेते हैं. ये तरीका है शरीर का अपने आप को बचाने का. तो पहली बात, इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार और आपने पहले भी सुना अगर, तो आई एम सेइंग वी हैव इंक्रीज द रिस्क फैक्टर्स इन द बॉडी. हमने अपने शरीर के अंदर बड़े सारे और बाहर बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ा दिए और ये शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. ऊपर से अगर हमारे परिवार में या हमारे जिनको हम बहुत लगाव है, जिनके साथ में प्यार है, नजदीकी है, वो कोई हादसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है. अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूं आपकी दूसरी कंडीशन के साथ में. आपको सोने के लिए अपने आप को पकड़ने की जरूरत है या छोड़ने की जरूरत है? छोड़ने की, मुझे लगता है छोड़ने की. तो आप छोड़ नहीं पा रहे? नहीं, इतना रिस्क बढ़ गया. जी. अच्छा, अब सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको. एक मजबूत इंसान जो है वो किसी खराब सिचुएशन से जल्दी निकलता है, ये कमजोर इंसान जल्दी निकलता है? मजबूत इंसान मजबूत पहले निकलता है. और मजबूती का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर कामकाज चल रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए. आपका दिमाग भी जो है ना, एक एनर्जी का फ्लो है, वो फ्लो प्रॉपर होना चाहिए और आपका कंट्रोल होना चाहिए. ये चीजें जब आप अंदर से अपने आप को मजबूत करेंगे तो ये चीजें अपने आप होंगी. दूसरी चीज, एक और बात इसमें बताना चाहता हूं मैं कि आप ये ना सोचें कि आपका माइंड और बॉडी अलग अलग है. एक्चुअली प्रॉब्लम आपके माइंड में पहले आती है, बॉडी में उसका फिर रिपरकशन है, उसके बाद दिखता है, देर से दिखता है. तो जितने भी लोगों को शारीरिक रूप से परेशानी है, एक्चुअली वो पहले मानसिक रूप से परेशान है ही है. केवल उनको टैग नहीं कर रहे क्योंकि ये टैग खराब माना जाता है. आपको बताऊं, मानसिक बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है. कोई दवाई नहीं बन सकती जो कि आपकी मानसिक बीमारी को ठीक कर सकती है. लेकिन आपको मैं ये 100% गारंटी देता हूं, आप कुंभक करना शुरू कीजिए, 100% कोई भी आपका माइंड से रिलेटेड इशू हो, चाहे वो सिंपल मेंटल टेंशन हो, चाहे वो इंसोम्निया हो, चाहे वो इसको और खराब नाम दे दीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, बाइपोलैरिटी हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, या कोई और आप नाम दे दें, वो सारे के सारे ठीक हो. तो आपका एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा. हमारे यहाँ पे लोग आते हैं और कुंभक करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो अल्प्राजोलाम खा रहे थे, 4-4, 5-5 गोलियां एक साथ, ऐसी हालत हो गई थी, और कुंभक करने के बाद में घोड़े बेच के सो रहे बिना खाए दवाइयों को. मैं भी वही चाह रही हूं सर. हाँ, तो ऐसा चाहिए, ऐसा बहुत जरूरी है. दूसरी बात ये कि ये बहुत ही एक नेचुरल चीज है लाइफ की, अनसर्टेनिटी और फाइनाइटनेस. लाइफ फाइनाइट ही होता है और इसकी अनसर्टेनिटी, ये दो चीज पक्का 100% गारंटेड है. तो जीवन का एक ही मकसद फिर उसके बाद में बचता है कि यू शुड हैव अ पर्पस, ओनली देन यू लिव.
एक पर्पस पे आइए, एक पर्पस चूज कीजिए, बाकी चीजों को आपको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको बाकी चीजों को एक्सेप्ट करके एक पर्पस बना के लाइफ को आगे ले जाना है। जब तक जिए, ज्यादा लंबा जिए, ये मकसद नहीं होना चाहता, हाँ होना चाहिए हमारा। अच्छा जिए, पर्पसफुल जिए, एक हेल्दी लाइफ जिए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ये जिम्मेदारी सबकी पहली जिम्मेदारी है। एंड दिस होल थिंग इज टुवर्ड्स दैट ओनली, कि आप डिपेंडेंट ना बने, आपके जीवन का मकसद बना रहे, आप अपने शरीर को अच्छे से इस्तेमाल करके कुछ कंट्रीब्यूट करें। आपका माइंड इतना क्लियर होना चाहिए, चीजों को सही देख सके। दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट दैट। एंड नो मेडिसिन, नो फूड, नो लेक्चर, नो फिलॉसफी कैन गिव यू दैट। ये आपका शरीर आपको दे सकता है, बट वो बेचारा लाचार है, क्योंकि आपने तो उसको क्रिमिनल बना दिया। सो इट विल हेल्प इन एवरी डैम प्रॉब्लम। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीजें आपकी ठीक। Some people might need to do a specific thing later on once they are at a certain level, और किसी एक पर्टिकुलर चीज को करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि जरूरत है कि नहीं, और विल से कि ठीक है 2 महीना और करो, आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अष्टांग चिकित्सा में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके अंदर नहीं है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस इन दिस प्रोग्राम। Okay, Thank you, sir. Rekha Mistry, ma'am, you can ask your question. Please unmute. Rekha Mistry, ma'am. Hello, sir. Pranam. I am Rekha Mistry. I am a yoga teacher. मेरे हस्बैंड को हार्ट रिलेटेड इश्यू था। उसको एक बार अटैक आया और एक वेसल में उसको ब्लॉकेज आया था, तो एक स्टैंड बिठाया है। तो ये चिकित्सा इसमें हेल्पफुल हो सकती है क्या? तो आपको ये समझना पड़ेगा हार्ट प्रॉब्लम आता क्यों, और ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होते। पहली बात मैं आपको बता दूं। ओके। देखो, किसी का अगर कहते हैं कि ये 95% ब्लॉक है, तो मुझे बताइए एक दिन पहले क्या वो कितना ब्लॉक था? 95% ही था ना। एक हफ्ता पहले कितना ब्लॉक था? 95% ही था ना। 6 महीना पहले कितना ब्लॉक होगा? 94% होगा, 93% होगा। 2 साल पहले कितना ब्लॉक होगा? 80% होगा, 60% होगा। तो ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक आता है क्या? नहीं। और जितना ज्यादा ब्लॉक उतना वो रिस्क कम हो जाता है। 90% ब्लॉक है, इसका मतलब उसको हार्ट अटैक होगा ही नहीं। 30-40% में हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है उसमें हार्ट अटैक। तो पहली बात यह है कि आप जो समझ रहे हैं उसको आप खुला रखिए अपना। जो आपको समझाया जा रहा है जरूरी नहीं कि वो सच है ना। सबसे जरूरी चीज ये है कि जब एलोपैथी आपको समझाए तो आपको बहुत शक की निगाह से देखना चाहिए। अगर एक फिरंगी, एक गोरा आपको कुछ समझाता है तो आपको बहुत ज्यादा शक की निगाह से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बेवकूफ और मूर्ख प्रजाति ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुई जितनी ये फिरंगी और गोरे हुए हैं। तो वो जो भी करे ना, तो आपको बड़ी शक की निगाह से देखना चाहिए। आपको ये भी क्लियर कट समझ जाना चाहिए कि आज तो ये जो बोल रहा है शायद हो जाए, 10 साल बाद तो मैं जीने लायक नहीं रहूंगी या रहूंगा, ये जो एडवाइस दे रहा है। तो गोरों की एडवाइस को ना माने। एलोपैथी की एडवाइस जब भी आप देखें तो बहुत जगह चेक कराएं, उसके बाद कोई डिसीजन लें, वरना शक की निगाह से आपको देखना चाहिए। क्योंकि उनको ये भी नहीं मालूम कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उनको ये नहीं मालूम कि हार्ट डिजीज क्यों। क्या मालूम है आपको? आपको सिखाया क्या गया है कि हार्ट पंप करता है ब्लड को। सबको यही मालूम है ना, सबको पढ़ाया ही गया। पर आपको रियलिटी मालूम है? कटिंग एज मॉडर्न रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूं। हार्ट पंप नहीं करता ब्लड को। अब बताइए, इतने सालों से तो आप यही सोच रहे थे। तो ये झूठी मोटी पढ़ाई के चक्कर में ना पड़े। कीप योरसेल्फ ओपन। ये पहला स्टेप है। यू आर इंडियन, आप भारतीय हैं तो आप बुद्धिमान हैं, ये आप मान के चले। प्रॉब्लम यह है कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, वो आपके बीच में आ रहा है। तो आप थोड़ा खुला रखें, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता। पहली बात, ब्लॉकेजेस बहुत आम है। जितने ब्लॉक होंगे उतना मजबूत हार्ट होता है। बचपन में, टीन एज में अगर ब्लॉकेजेस नहीं हो तो वो इंसान 30 साल भी नहीं जी पाएगा। क्या आपको मालूम है इस बात का? तो ब्लॉकेजेस जरूरी है हार्ट फंक्शन के लिए।
दूसरी चीज, अगर आपके बॉडी में प्रेशर नहीं बन रहा, हार्ट में प्रेशर नहीं बन रहा, तो काम कैसे करेगा? तो प्रेशर तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे समझ लीजिए पानी का प्रेशर नहीं है पाइप में, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा दबाते हैं सामने, तो प्रेशर बढ़ता है। तो हार्ट वही काम करता है, ब्लॉक करके प्रेशर को बढ़ाता है ताकि वो काम कर पाए। आप ब्लॉक हटा दोगे तो बेचारा उसको हार्ट अटैक, इसलिए 5 साल कम हो जाती है जैसे ही आप एक एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, क्योंकि आप उल्टा जा रहे हैं, आप शरीर के खिलाफ में जा रहे हैं, आपने शरीर को क्रिमिनल सोच के कोई काम किया। पहली बात, ब्लॉकेजेस जरूरी हैं। दूसरी बात, हमारे शरीर के हार्ट के अंदर कोलैटरल्स होते हैं जो खुल जाते हैं जैसे ही ब्लॉकेजेस एक लेवल पे पहुंचेंगे। 95% ब्लॉक हुआ, 96% ब्लॉक हुआ, वैसे ही वो कोलैटरल खुल जाएगा, आपका हार्ट और मजबूत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दर्द होगा, आपके साथ गेम चालू कर देंगे। पहली बात, हार्ट का पेन, मिडिल हार्ट में अगर दर्द होना, वो हार्ट अटैक नहीं होता। पहली बात, हार्ट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। 90% टाइम इसका 99% टाइम इसका कोई रिलेशन नहीं है हार्ट के साथ में। इफ द पेन इज कॉन्टिन्यूस, लगातार दर्द हो रहा है आपको छाती में, वो उसका हार्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लो। दूसरी चीज, ब्लॉकेजेस हर एक के हार्ट में होते हैं, ब्लॉकेजेस हर एक के हार्ट में होते हैं। जितने ब्लॉक उतना स्ट्रॉन्ग हार्ट। थोड़ी देर के लिए अगर कभी ऐसा दर्द हो भी गया हार्ट से रिलेटेड, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए उसको सह लेंगे तो कोलैटरल बना देगा आपका हार्ट। हार्ट डिजाइंड नहीं है ऑपरेशन करने के लिए। जो आयुर्वेद का पूरा टेक्स्ट, जो कि एलोपैथिक के पूरे नॉलेज से बहुत बड़ा नॉलेज है, केवल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ये बात अलग है। उसमें कहीं पर भी सर्जरी कहां से आया? आयुर्वेद से आया, सुश्रुत से आया। जो हिपोक्रेटिस है, जिसके हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज जाते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, वो सुश्रुत का शिष्य है, 3rd जनरेशन का। सर्जरी हमारी देन है दुनिया को, साइंस हमारी देन है दुनिया को, जिसका टैग लेके गोरे फिर रहे हैं, मगर चोरी की भी चीज है, इनको हजम नहीं होगी, ये बर्बादी होंगे और हमको भी बर्बाद कर देंगे लास्ट में। तो हमें कहीं इससे निकलना पड़ेगा। पहली बात, इतने बड़े ग्रंथ आयुर्वेद के इतने टेक्स्ट हैं, आप मैं पढ़ ही नहीं सकते, कहीं पर भी हार्ट सर्जरी का मेंशन नहीं है, जबकि हर तरीके की सर्जरी का मेंशन है। ऐसा क्यों है? जो शरीर के बारे में इतना जानते थे, वो हार्ट सर्जरी के बारे में क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि हार्ट को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, कभी नहीं होती है। उसके पास सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, एक प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, सब इसके अंदर है। आप इसको मौका ही नहीं दे रहे क्योंकि आपको डरा दिया गया। आपका हार्ट अगर सही में खत्म करना चाहेगा अपने आप को, तो 4 मिनट भी नहीं देगा आपको, और आपको हॉस्पिटल पहुंचने में 4 मिनट कहीं कोई नहीं पहुंचता। जब आपके शरीर, आपके हार्ट ने बचा लिया अपने आप को, आपके शरीर ने बचा लिया, तब उस पर कहते हैं कि जी सही टाइम पे हॉस्पिटल आ गए। अरे ऐसा क्या कर दिया आपने? किसी भी हार्ट अटैक के मरीज को आज तक नहीं बचाया जा सका, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हमने बचा लिया जी। तो पहले दिमाग को खुला रखिए। दूसरी बात ये, किसके कहते हैं दक्षिणाग्नि। हार्ट किस पे काम करता है, कौन से बल पे काम करता है? इसे कहते हैं दक्षिणाग्नि और दक्षिण बल है। इसका मतलब क्या है? इसी को दूसरे पक्ष में कहें व्यान फैक्टर। 2 चीजें बता रहा हूं, दक्षिणाग्नि और व्यान फैक्टर को ठीक कर लो, हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। बहुत केसेस हैं, बहुत केसेस हैं हमारे पास में। ब्लड प्रेशर तो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। व्यान फैक्टर क्या है? जैसा अभी बात कर रहे थे, एक्सलेशन पे अगर आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो व्यान फैक्टर कमजोर हो जाएगा, तो उस समय आपके बॉडी में अपने आप को बचाने के लिए बॉडी ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो ब्लड प्रेशर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आप जो उसका रूट कॉज है उसको ठीक कर देंगे तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, दक्षिणाग्नि। फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हैपेंस विद दक्षिणाग्नि, यानी आपका होल्ड फैक्टर, यानी आपके शरीर का होल्ड फैक्टर, कुंभक फैक्टर। कुंभक फैक्टर कम हो गया, हार्ट कमजोर हो जाएगा। तो कुंभक, हार्ट को मजबूत करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुंभक फैक्टर। दूसरा, स्टेंट नहीं लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना पड़ेगा। पर ये आपके डॉक्टर आपको डराएंगे, नहीं नहीं सांस नहीं रोकना। आपका कमजोरी जो एस्पेक्ट हो गया है वही नहीं करना, यानी वो कह रहे हैं कि भाई व्हीलचेयर पे बैठोगे ना तो आपके पांव मजबूत हो जाएंगे। ऐसा हुआ है आज तक कि बताइए? आप नहीं चलें और उससे आपका शरीर मजबूत हो जाए, ऐसा हुआ है? बिस्तर पे पड़े रहने से आपका शरीर खत्म होगा या मजबूत हो जाएगा? व्हीलचेयर पे बैठने से आपके पांव मजबूत होंगे? नहीं, वो तो चलने से ही होंगे, पर आपको चलने के लिए मना कर दिया। ऐसे काम नहीं करता, लाइफ ऐसे काम नहीं करती। जो वीक हो गया उस पर आपको काम करना है। कुंभक आपका वीक हो गया, कुंभक पे आप काम करें, हार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो स्टेंट नहीं लगेगा, नहीं तो स्टेंट एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, और बीच में हार्ट अटैक आ जाएगा। और हम किसको दोष देंगे? कम से कम जिसकी वजह से आया उसको तो दोष नहीं देंगे।
So why heart attack has become number one cause of death in the world today? 25 लाख लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, रिसर्च किया गया, पता लगा कि हार्ट अटैक इज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ. 100 years बैक हार्ट अटैक होता ही नहीं था, हार्ट डिजीज नहीं होता था एटलीस्ट. सो वी हैव क्रिएटेड दिस, ये आपको समझना पड़ेगा. और दूसरी बात, स्टैटिन खाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खाते रहते हैं. कोलेस्ट्रॉल आप अपने स्ट्रेस से अपने शरीर को बचना ही दे देंगे तो कैसे बचाएगा वो? बहुत कॉमन सा फैक्टर है. स्टैटिन शुड बी बैन्ड. आपको मालूम है एसीपी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन गाइडलाइन 2016, जिसको कि सारी दुनिया फॉलो करती है, वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको स्टैटिन जरूर खिलाया जा रहा है. तो ये बहुत सारा मिसमैच है. लोग जानते नहीं क्यों होता है, उसके बाद भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं. एलोपैथी को कुछ मालूम नहीं हार्ट डिजीज के बारे में, फिर भी ट्रीटमेंट कर रहा है. और आखिरकार क्या कहेंगे? अरे हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी खराब हुआ किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, लिवर खराब हुआ लिवर ट्रांसप्लांट. आप कुछ ठीक कर ही नहीं सकते. ट्रांसप्लांट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कुछ ठीक कर ही नहीं सकते. नहीं तो कोई ट्रांसप्लांट की बात क्यों करेगा जब आप ठीक कर सकते हैं? तो आप ठीक कर ही नहीं सकते. कीप योर माइंड्स ओपन. यू आर इंडियन पीपल, आप भारतीय हैं, अपने दिमाग खोल के रखिए. चालबाजी को समझना पड़ेगा हर तरीके की. अच्छाई के नाम पे भी लोगों को मार दिया जाता है. तो ये बात थोड़ा आप ओपन रखें, देखें कि कैसे ये ठीक हो सकता है. मैंने एग्जैक्टली बता दिया आपको. अगर न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है और हार्ट डिजीज है तो फिर ये ज्वाइन कर सकते हैं. अगर नहीं है तो फिर आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, विल गाइड यू टू द राइट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम. कंडीशन डाल दीजिए उसमें, फिर विल गाइड यू टू द राइट काइंड ऑफ, बिकॉज वी रन दोस प्रोग्राम्स. हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर प्रोग्राम, वी रन डायबिटीज प्रोग्राम, थायराइड प्रोग्राम, वी रन अस्थमा एलर्जी रिलेटेड इश्यूज, उसका कैंसर का प्रोग्राम रन करते हैं. हम रन करते हैं फर्टिलिटी के लिए, गर्भाधान फॉर पीपल, फॉर लेडीज एंड मेल्स हु आर नॉट एबल टू कंसीव, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनको फर्टिलिटी इश्यूज हैं, उनके लिए करते हैं. गर्भ संस्कार करते हैं, अष्टांग गर्भ संस्कार के नाम से करते हैं. Our whole idea is to rebuild humanity. Sheetal ma'am, you can ask your question. This will be the last question. Sheetal ma'am, Yes. Good evening, all of you, and pranam Guruji. And we are really enlightened by your, your whatever you are expressing. I think we are really, what you're talking is really makes a lot of sense. I can gauge that now only. And I have also a lot of regards for holistic healing instead of popping pills and taking a lot of medicines. I feel if we heal holistically in other methods, maybe, by कुंभक or whatever आप जो भी सिखाएं अपने इस कोर्स के दौरान, I think that should benefit us more. My question here is that I have been having this last 6 months pain from the back, which is coming into the front stomach region on bending. And when I get up after sitting down for long. Now I have shown there, they did an MRI and all that and not able to diagnose. I feel it's more of my organ involvement, but the doctors say that it's more of, somewhere in the back or the spine, some kind of disc is, but MRI also was not very significant, though some amount of disc pressure they did show, but not very significant. So this thing is that, how to go about treating, but this is affecting my quality of life. And my second question was that can one individual be, all the doshas can be affected at the same time? This is my second question, sir. Yes, all doshas can be impacted. In fact, I see a lot of people getting into that kind of a situation where it's all vata pitta kapha, all imbalanced. So, and it is increasing. So it will become like an epidemic because we are not doing treatment. We are actually Yes. What we are going against life. Everything that we are doing is against life. Now, coming back to that, आपको एक example, just to give you an example, when you feel a little tired, do you slouch or are you straight? No. When you have low energy, I slouch. anybody slouches. Yes. है ना? ये बात आपको समझ में आए. So, yes. What happens to the skeletal system of your body? So there is a pressure on the joint, especially the spine area. There is a pressure in the joint. Now this is what, if you see a kid also in today's time, you'll see every kid is trying to slouch. In fact,
they are watching all the time, they are watching screen with the slouch body, or they are lying down. Yes, yes. So when there is a lack of energy in your system and you are not rejuvenating it, because everything we are doing is actually degrading or dissipating the energy within you. You don't feel good sitting straight. Ideally, you should feel good sitting straight, and you should feel wanting to do something, wanting to use your body. Just look at a small kid. He just wants to use the body. So when the bala, there are 6 basic balas in your body, or strengths in your body. Deha bala, dosha bal, dhatu bal, agni bal, mano bal, ojas bal. There are 6 balas. Now these 6 balas, if they are proper in your body, you would want to do a lot. You will feel lot more energetic, and the stretch of skeletal system. Your skeletal system needs a stretch. The stretch in the skeletal system will be more. Right? It comes with strength. The moment you are weak, it all gets compressed. So your spine has a compressive or a compression difficulty. It is getting compressed. Add to it degeneration. And now you are looking at a major problem 5 years down the line. At present, it might not be that prominent, and no diagnosis can tell you that. But 5 years down the line, you are up for a major issue of a spine. What is the solution? How you can come out of this? How you can easily come out of this? By creating the required strength within the body. And at this point, what do you say? जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे ना, उतनी जल्दी आपके को मदद मिल जाएगा. If you wait for long, if the damage is more, then recovery will take a lot of time. So it is proportional. तो अभी आपको अगर थोड़ा स्पाइन को भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा. One more thing I can tell you, अभी करके देखना आप. It is better to do a complete treatment. वो हमेशा सही रहेगा, मगर आपको एक क्विक फिक्स बता रहे हो. क्विक फिक्स से आपका पूरा स्ट्रेंथ रिकवर नहीं होगा, ये भी बता रहा हूं. क्विक फिक्स बता. सो यू लाई डाउन अपसाइड डाउन, थोड़ा ऊपर, पांव सिर नीचे. पुट 2-3 कुशन्स बीनीथ योर लोअर बैक. कमर के नीचे 2-3 कुशन डाल लो और पांव को ऊपर रख लो, बेड पे रख लो, दीवार पे रख लो, एंड हेड डाउन. ऐसे